Good evening, everyone. It is my pleasure to introduce today's session moderator, Ms. Pooja Upadhyay. Ms. Pooja Upadhyay is a dedicated educational facilitator at Vibjir High, Yelhunka, Bangalore, where she is committed to fostering an engaging and supportive learning environment for her students. She holds a Bachelor of Commerce degree from Bangalore and is currently pursuing a Bachelor of Education at Bangalore City University to enhance her teaching methodologies and educational expertise. Since embarking on her professional journey, Ms. Upadhyay has shown a strong dedication to the field of education. Her innovative approach to teaching, coupled with her ability to connect with students on a personal level, has made her an integral part of her institution. Ms. Upadhyay is deeply committed to caring young children and believes in the transformative power of education. With her dedication and enthusiasm, she aims to make a lasting impact on her students' academic and personal growth, aspiring to create a brighter future for the next generation. Hearty welcome, Ms. Pooja. Please proceed. The stage is yours. Yes, you can start now. धन्यवाद बीजू सर, इस आकर्षक परिचय के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन सभी शिक्षकों को मेरा सत सत प्रणाम। शिक्षा के दीप जलाने वाले सभी शिक्षकों को शुभ संध्या। एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की ओर से आयोजित किए गए आभासी प्रशिक्षण सत्र का आरंभ करते हुए मैं पूजा उपाध्याय आपकी मॉडरेटर के रूप में सभा में उपस्थित समस्त हिंदी सेवियों, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, कार्यक्रम समन्वयक श्री बीजू पिल्लई सर और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद प्रसून जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सत्र को गतिमान करने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि सत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए दृढ़ता पूर्वक इसका पालन किया जाएगा। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वह अपने माइक म्यूट पर रखें। प्रतिभागी अपने संवाद चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। स्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा अंत में उनके समाधान अवश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र के अंत में सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें और अपने नाम पुकारे जाने पर वह अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट एवं फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की भावना की अपेक्षा है। कार्यक्रम संचालन हेतु मुझे चयनित कर यह अवसर प्रदान करने हेतु मैं इस संस्था के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर सलाम सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यह बहुमुखी प्रतिभा में व्यक्तित्व रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी क्रांति को ध्यान में रखते हुए शिक्षक समुदाय को एक बेहद अद्भुत मंच देने का प्रशंसनीय कार्य बेहद सफलतापूर्वक कर रहे हैं। डॉक्टर सलाम सर एक शिक्षाविद हैं जिनके पास शैक्षिक क्षेत्र में 29 वर्ष से भी अधिक का अनुभव है। आप सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर भी हैं। बीटेक और अब एक्स्ट्रा माइल शिक्षा और प्रशिक्षण के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत हैं। मैं गर्व और पूरे सम्मान के साथ सभा में उपस्थित सभी हिंदी सेवियों की ओर से आपका स्वागत करती हूं और सभी को संबोधित करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूं। ओवर टू सलाम सर। धन्यवाद। Thank you. Very happy to see Prasoon sir with us. In fact, 2 times we had to postpone this session because of his, ill health. Everything is the blessing of God, we believe. So we thank God before we begin. And we are very happy to see many educators are coming forward. Pooja Upadhyay is an example. So we welcome each and everyone to come forward as leaders. Manisha madam also has joined. Manisha madam, next is your turn. Please be ready. Yeah. And respected Biju sir and Prasoon sir, very happy to have you with us again. And everybody is looking forward to listen to Prasoon sir
in fact, we had a gap of 2 months or more than that. We were busy with the exam and all. Now we are going to begin another academic year. So with the blessing of Vinod Prasoon, let us begin this academic year. Everybody is, looking forward to listening to him. So, sir, on behalf of everybody, we, welcome you to this session, and we have no doubt that, as usual, we will be enriched and enlightened by your words of wisdom and clear all the doubts with regard to Hindi syllabus of grade 9 and 10. So, dear participants, hearty welcome once again to Extra Mile Educational Training. Let's sit back and enjoy the session. Over to Pooja ma'am. Pooja ma'am, over to you. Thank you. धन्यवाद सर, आप सलाम सर। इस उम्मीद से कि आपका मार्गदर्शन हमें सदैव इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। हम सत्र को अग्रसर करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम समन्वयक श्री बीजू पिल्लई सर का। श्री बीजू पिल्लई सर का शिक्षा में व्यापक अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया है। आप एक्स्ट्रा माइल एजुकेशन और ट्रेनिंग के सह निर्देशक भी हैं। सर, हमें आप जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का हमारे साथ होना वास्तव में सम्मान की बात है। महोदय, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी आपसे कुछ प्रेरणादायक शब्दों की अपेक्षा रखते हैं। ओवर टू बीजू सर। Thank you, Pooja ma'am. Most respected Director Dr. Abdul Salam sir, Vinod Prasoon sir, and all other brothers and sisters from all over India. As Salam sir told, everything is depends upon our Almighty. So Almighty has brought our land back to peace and prosperous. For the last 1 week, we all were in a tensed mode. What is going on Jammu and Kashmir and other parts of the states. So gradually now peace and prosperity started coming back. And in the meanwhile, we have got our master also back with full health. So Vinod Master, once again back to the pavilion. Well, let us listen. And from 7th standard onwards, CBSE textbooks are completely changed. So we would like to know what are the gradual changes happened in 9th and 10th Hindi textbooks also, and what all are the new methodologies. So we can listen some new kavitas also from our Vinod sir. So let us make this evening a more colorful and marvelous. Thank you, ma'am. Back to moderator. धन्यवाद बीजू सर। इस प्रेरणादायक शब्दों हेतु आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे पथ प्रदर्शक और हम सबके प्रिय माननीय डॉक्टर विनोद प्रसून सर का पुनः स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस मंच पर संसाधन कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर इसे खास बना दिया है। आप पिछले 3 दशकों से अध्यापन व लेखन से जुड़े हुए हैं और हिंदी संसाधन विषय विशेषज्ञ के रूप में एनसीईआरटी और सीबीएसई तथा भारत सहोदय कॉम्प्लेक्स से भी जुड़े हुए हैं। आप एनसीईआरटी की कक्षा 1 और 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी के निर्माण समिति के सदस्य भी हैं। आप 1 से 10वीं तक की व्याकरण पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण के लेखक भी हैं। आपको विभिन्न अवार्डों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे साहित्य श्री सम्मान, हिंदी भाषा सेवा सम्मान, ग्लोबल डायमंड अवार्ड। सीबीएसई भारत सहोदय द्वारा स्टार रिसोर्स पर्सन अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप वर्तमान में दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभाग अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। गीत संग्रह, बाल गीत संग्रह तथा गजल संग्रह आदि विनोद सर की उल्लेखनीय कृतियां हैं। अब मैं आदरणीय विनोद सर से निवेदन करती हूँ कि आज का जो विषय है, बोर्ड द्वारा 9वीं 10वीं की कक्षा के लिए जारी नवीनतम हिंदी पाठ्यक्रम की जानकारी और उसके लिए हमारी रणनीतियां आदि के बारे में हम सभी को अपने विस्तृत ज्ञान से अवगत कराएंगे और हम सब आपके ज्ञान से प्रकाशित होंगे। ओवर टू विनोद सर। धन्यवाद पूजा बहन। धन्यवाद। आदरणीय सलाम सर, बीजू सर, मनीषा बहन और भी सभी बहन भाई
वास्तव में आज पुनः अभिभूत हूँ। आपका स्नेह मिला और उस समय स्वास्थ्य प्रभावित रहा। आप सबके शुभकामनाएं मुझे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार यह स्नेह आप सदैव बनाए रखें। अ, आज विषय बहुत अच्छा है। हम चर्चा करेंगे और विशेषकर हम रणनीतियों पर ज्यादा चर्चा करेंगे। कैसे हम रणनीति बनाएं, जो सिलेबस है उसको कैसे सहजता के साथ बच्चों तक हम बच्चों के मन में उतारें। तो आज हम चर्चा करेंगे। मैं पीपीटी शेयर करता हूं। पीपीटी दिखाई दे रही है सभी को? yes sir, clear. हाँ जी। जी। आज हम चर्चा करें, जैसे मैंने कहा कि हम चर्चा रणनीतियों पर अधिक करेंगे और सिलेबस के बारे में भी बातचीत करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो अध्यापन से हम सब जुड़े हुए हैं। अध्यापन बहुत पुनीत सेवा कार्य है। सबसे पहले अध्यापन के सभी वर्ण क्या कहते हैं उसको काव्य में सुनते हैं, उसके बाद हम विषयगत चर्चा शुरू करेंगे। और पूजा बहन ने बहुत अच्छा संचालन कर दिया है। बहुत आरंभ बहुत आकर्षक हो गया है। तो मुझे विश्वास है हमारी कार्यशाला चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी। और आप सब भाई बहन जुड़े हुए हैं। आपकी उपस्थिति, गरिमामयी उपस्थिति कहीं ऊर्जा देती है और वह ऊर्जा कार्यशाला को चरमोत्कर्ष प्रदान करती है। तो एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। शुरू करते हैं। देखिएगा, आप की भावनाओं से जुड़ा हुआ गीत है, आपकी निष्ठा से जुड़ा हुआ गीत है। आप सुनिएगा। देखिए, अध्यापन का कहता जो निष्ठा से सुनिएगा, अनुशासित अध्ययनशील अध्येता सा रहिएगा। अब ही देखिए आह्वान कर रहा है, हमें अनुशासित रहना है, हमें अध्ययनशील रहना है, हमें अध्येता भाव मन में रखना है ना। और ये जब ये गुण होंगे ना हमारे अंदर, अन्वेषण का गुण आ जाएगा, अपनत्व का गुण आ जाएगा, तो कहीं जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है या जो नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप है उसको हम सहज बना पाएंगे बच्चों तक। जो अधिगम है भाषा का वह सहज हो जाएगा, दक्षता विकास होगा, सब कुछ होगा। अब देखिएगा, अन्वेषण अपनत्व सहित आदर्श भरे हो प्रण में, रहे अद्यतन नवाचार के रंग भरे शिक्षण में। तो कहता है ध्येय हमारा जुड़ा हो अंतर मन से, शिक्षण को जोड़े सौहार्द मानवता जनगण मन से, ध्वजा बने समरसता और सद्भाव लिए जो ठहरे, हम सरिता हो संस्कार की ना पानी हो ठहरे। तो देखिए, ने क्या आह्वान किया, ह ने क्या आह्वान किया हमसे। अब य क्या कह रहा है, अभी ध का पहले सुनते हैं 2 लाइनें। धैर्यशीलता जैसा गुण भी मन महकाता जाए, धुरी देश की है हम भी यह हमें बताता जाए। अब यो क्या कहेगा, यो कहता है युग निर्माता बन करके दिखलाएं, कक्षा में गढ़कर चरित्र हम उजला देश बनाएं, बने योजनाबद्ध योग्य हम यो यह भी कहता है, यायावर बन संग समय के शिक्षक ही बहता है, अब पुनीत पावन कर्मों का पाठ पढ़ाया करता, पूजित सेवा है अध्यापन यह बतलाया करता, कहता प्रेरक बनो प्रेरणा बन मन खूब सजाना, बन प्रयोग धर्मी अधिगम को बिल्कुल सहज बनाना, नौ कहता है नवाचार से पाठ सहज करना है, जीवन कौशल की सुगंध से अंतर मन भरना है। तो केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना है, जीवन कौशलों का भी विकास करना है, दक्षताओं का भी विकास करना है। और नौ नवीनता नौ निर्मलता से मन को महकाना, नौ कहता आगे बढ़ युग को नूतन राह दिखाना, आए हम अध्यापन का आह्वान हृदय से जी लें, अध्यापन के चरणामृत को श्रद्धा के संग पी लें, अध्यापन के चरणामृत को श्रद्धा के संग पी लें, हाँ श्रद्धा के संग पी लें।
आपको कैसा लगा ये गीत? बहुत अच्छा लिखा है आपने। धन्यवाद। आपको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में आके मुझे बता दीजिए। हाँ जी, अर्जुन जी भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार अर्जुन जी। आ, और भी आप सबके मैसेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। जी सर, कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब विषय का चर्चा करते हैं, जो आज का विषय है हमारा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। देखिए, जब संवाद होता है ना तो अच्छा लगता है। अब आप चैट बॉक्स के माध्यम से संवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। आप सबके जो आप सबकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है, आप सबकी शुभकामनाएं मिल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पाठ्यक्रम है, और चाहे कोर्स ए का हो, चाहे कोर्स बी का हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, अपठित बोध ये है, सिलेबस में है। और अपठित कोर्स ए में अपठित गद्यांश भी है, पद्यांश भी है, लेकिन कोर्स बी में केवल अपठित बोध है, केवल अपठित गद्यांश है। 2 अपठित गद्यांश हैं। आज हम बातचीत शुरू करते हैं अपठित गद्यांश से, और बाद में सीधे इसी क्रम में व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण, साहित्य, रचनात्मक लेखन, जितनी भी चर्चा संभव होगी उतनी चर्चा हम करेंगे। आप देखेंगे इसमें, अगर टेबल आप देख रहे हैं, इसका फोटो क्लिक कर लीजिएगा। इसमें कितना समय हम कहाँ लगाएं, पठन का समय क्या होना चाहिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो पाठ्यक्रम तो जारी हुआ, आपके पास पहुंच गया, लेकिन उसको अब हम कैसे समय के हिसाब से बांटें, कितना समय किस खंड में हम लगाएं, पठन का कितना समय निर्धारित हो, और कितना समय हम उसको करने में लगाएं। तो आप देखिए, यहाँ पर सब कुछ बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर दिया गया है। आप नीचे जाएंगे तो रचनात्मक लेखन खंड में कितने शब्द हैं, प्रति मिनट हमारे पास कितने शब्द पढ़ रहे हैं, वह भी उल्लेख वहां पर दिया गया है। तो आगे पहले हम धीरे धीरे करके चर्चा करते हुए चलते हैं। आपने देखा ही है, अपठित बोध सबसे जरूरी है। 14 अंकों का अपठित बोध निर्धारित है। 14 अंक बहुत होते हैं, है ना। तो हमारे बच्चे अगर अपठित बोध को अच्छी तरह से समझ सकें, अर्थबोध कर सकें, अर्थग्रहण क्षमता उनकी अच्छी हो, उच्च चिंतन क्षमता उनके अंदर हो, है ना, तो सहज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए करें क्या, रणनीति क्या हो? क्या हम जो बोर्ड स्तर जो बोर्ड ने स्तर निर्धारित किया है अपठित बोध का, आपने देखा होगा, उच्च चिंतन क्षमता पर आधारित है, दक्षता आधारित है। तो सबसे पहले हम उन तक कैसे पहुंचाएं हुए, तो एक उपाय है जिसका उल्लेख मैं यहां पर करूंगा। आप देखिएगा आगे। एक ही अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित सामान्य कठिनाई स्तर एवं उच्च कठिनाई स्तर वाले बहुविकल्पी प्रश्न एक साथ हम दें। कैसे? हमने पहले 5 प्रश्न, एक ही अपठित बोध है, लेकिन हमने क्या किया, उसको पहले सामान्य कठिनाई स्तर का बनाया, फिर उच्च कठिनाई स्तर का बनाया। अगर हम 5-5 प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं, तो 5 ही प्रश्नों में, या हमने कुछ प्रश्न बढ़ा लिए, उसमें 2 हमने प्रश्न दे दिए उच्च चिंतन क्षमता वाले, 2 हमने दे दिए सामान्य कठिनाई स्तर वाले। मैंने अलग अलग बनाए हैं। आप देखिए, इस प्रकार अगर हम अभ्यास करवाते हैं, पहले हम सामान्य कठिनाई स्तर का, एक अपठित बोध है, पहले सामान्य कठिनाई स्तर वाले प्रश्न दे दें, उसके बाद हम उच्च चिंतन क्षमता वाले, उच्च कठिनाई स्तर वाले हम प्रश्न दें। देखिए कैसे, आप देखिएगा। यहां पर एक गद्यांश है, आप देखें। पूजा बहना, आप पढ़ेंगी इसे? यू आर ऑन म्यूट पूजा मैम। इस गद्यांश को। सर, मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब आप मुझे बोलेंगे कि मैं पढ़ूं। जी सर, जी मैं जी, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। नहीं, बीच बीच में इस प्रकार जी। जी जी बिल्कुल। सहृदयता एक ऐसा गुण है जो मानव को अन्य प्राणियों से अलग करता है। जब व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को समझकर सहायता के लिए आगे आता है, तब वही उसका सहृदय स्वरूप होता है। सहृदय व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी सोचता है।
सामाजिक व्यवहार में सहृदयता का महत्वपूर्ण स्थान है। एक अच्छा सामाजिक व्यवहार केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें सहानुभूति, सहयोग और सद्भावना भी समाहित होती है। जब समाज के लोग एक दूसरे के प्रति सहृदय और संवेदनशील होते हैं, तो सामाजिक संबंध सुदृढ़ होते हैं। इससे समाज में विश्वास, भाईचारा और शांति का वातावरण बनता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने व्यवहार में सहृदयता को स्थान दे, ताकि एक स्वस्थ, समर्पित और सशक्त समाज का निर्माण हो सके। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, आपने पठन देखा, तो एक बार आप ताली बजा दें। पूजा बहन के लिए ताली होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे हम अब आगे देखिए, रणनीति यह है कि हम एक ही जो अपठित गद्यांश है उसको दो स्तर का बना दें। एक सामान्य कठिनाई स्तर वाले प्रश्न दें बच्चों को पहले, उसके बाद उनको जो उच्च चिंतन क्षमता वाले हैं, उच्च कठिनाई स्तर वाले प्रश्न हैं, वो दे दें। अब देखिए सामान्य कठिनाई स्तर वाले प्रश्न कैसे सहजता के साथ आते चले जाएंगे, आप देखिएगा। अब सामान्य कठिनाई स्तर है, सहज अर्थबोध है, सहृदयता किसे कहते हैं। तो अपने हृदय का ध्यान रखने को, जरूरत के समय दूसरों से मदद मांगने को, समाज के लिए सरकार से लड़ने के भाव को, दूसरों के दुख को समझने और मदद करने को। अब सहज बोध है, पूरा पढ़ा गया तो सहज बोध हो गया। बच्चा, ज्यादातर बच्चे 90% बच्चे चुन लेंगे उत्तर, और वो जो 10% है वो भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे और कर लेंगे। उनको पता है कि गद्यांश में, और आपने देखा कि उसमें रेखांकित किया हुआ है। जब बच्चे पढ़े तो मुख्य जो बिंदु हैं उनको रेखांकित भी कर लें। इस प्रकार अगर अभ्यास करेंगे तो देखिए, अब सामान्य कठिनाई स्तर वाला है, बच्चों को अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी होगा। फिर हम ऐसा प्रश्न देंगे, जब 5 प्रश्नों का अलग उच्च कठिनाई स्तर वाला बनाएंगे इसको, इसी गद्यांश को, तो बच्चे फिर थोड़ा थोड़ा सहज हो जाएंगे, केंद्रीय भाव समझ चुके होंगे, तो वो उच्च कठिनाई स्तर भी झेलेंगे। अब देखिएगा अगला प्रश्न, सहृदय व्यक्ति किसके दुख दर्द को समझने का प्रयास करता है। सामान्य कठिनाई स्तर है, सभी लोगों के, अपने मित्रों के, केवल अमीरों के, केवल अपने परिवार के। तो सहज अर्थबोध है, बच्चा समझ जाएगा। सामान्य कठिनाई स्तर है, तो बच्चे को पता चल गया, आपको भी पता चल गया होगा, है ना। यहाँ नीचे मैंने उत्तर भी दिया हुआ है ना, क्योंकि ये सहज, हम यहाँ पर अभी क्विज नहीं खेल रहे, अभी हम सीधे जो उत्तर है उस पर हम पहुंच रहे हैं। अब आप देखिएगा, अब देखें, कथन कारण वाले प्रश्नों में बच्चों को ये बताएं कि बेटा बीच में एक बार ना क्योंकि से चेक किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% क्योंकि से उत्तर आपको मिलेगा तो आप उसको आप देख लेंगे। लेकिन एक, हम अगर क्योंकि लगा के प्रश्न करें, अगर जैसे सहृदयता से समाज में शांति का वातावरण बनता है, तो सहज है, बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसमें। सहृदय लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसको पता चल रहा है, सामाजिक व्यवहार का पता चल रहा है, और सहयोग की भावना रखते हैं। तो अब सहृदयता से समाज में शांति का वातावरण बनता है, क्योंकि सहृदय लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं और सहयोग की भावना रखते हैं। तो अब उसको पता चल गया कि दोनों सही है, व्याख्या भी हो रही है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो उत्तर हो गया, सहज उत्तर हुआ। अभी सामान्य स्तर है। अब देखें, अब वर्णनात्मक प्रश्न है, ये भी सहज हैं। अगर बच्चे ने गद्यांश पढ़ा है तो उत्तर आ जाएगा। सहृदय व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं गद्यांश में बताई गई हैं। 2 अंक का प्रश्न है, बहुत बड़ा लिखना नहीं सिखाना है। वो जो बोर्ड की शब्द सीमा है 25 से 30 शब्द, हमें उसी के अंदर उनसे लिखने के लिए कहना है। क्योंकि अगर इसका उत्तर बड़ा होगा तब भी सही नहीं रहेगा। अगर यहां समय अतिरिक्त गया तो पेपर कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। तो हम सिलेबस की तैयारी इस प्रकार करवाएं कि ऐसी रणनीति बनवा के करवाएं जिससे हमारा वो जो पेपर पैटर्न है उसके साथ कहीं सामंजस्य हो। केवल हमने पाठ्यक्रम को पढ़ लिया उसके बाद उनको पूरा करवा दिया, नहीं, उसको कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न से जोड़ते हुए चलना है। क्या पेपर पैटर्न है, बोर्ड कितनी शब्द सीमा की अपेक्षा रख रहा है, उनको सब जानकारी हमारे द्वारा दी जाए। तो यहाँ पर 25-30 शब्द हैं, उसके अनुसार गद्यांश के अनुसार सहृदय व्यक्ति
दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनकी सहायता के लिए आगे आता है। वह अपने साथ साथ समाज के बारे में भी सोचता है। उसमें सहानुभूति, सहयोग और सद्भावना जैसे गुण होते हैं, जिससे वह समाज को सही दिशा दे पाता है। एक शानदार उत्तर हो गया। अगर 2 बिंदु बच्चे ने दे दिए हैं तो उसको हमें 2 अंक देने चाहिए। आगे पूजा बहन, आपके लिए प्रश्न, आप पढ़िएगा। सहृदयता समाज में किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करती है? उत्तर, सहृदयता से समाज में विश्वास, भाईचारा और शांति का वातावरण बनता है। जब लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और सहायक होते हैं तो सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और समाज सशक्त बनता है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब कठिनाई स्तर बदलते हैं। देखिएगा, तो आप ये बताएं मुझे, एक सही रणनीति है, बोर्ड कठिनाई स्तर बढ़ा रहा है, अगर हम सामान्य से होते हुए उच्च कठिनाई स्तर तक जाएं तो उसका अभ्यास बच्चे सहजता के साथ कर पाएंगे। अब आप देखिएगा, उच्च कठिनाई स्तर वाले प्रश्न आपके सामने हैं, लेकिन बच्चे उसको समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कठिनाई, वो केंद्रीय भाव समझ गए। इस प्रकार अगर हमने 5-6 अपठित गद्यांश करवा दिए, सामान्य कठिनाई स्तर के प्रश्न बना के और उच्च कठिनाई स्तर के प्रश्न बना के, तो हमारे बच्चे ना सहज हो जाएंगे। और बोर्ड द्वारा जो कठिनाई स्तर बढ़ाया जा रहा है अपठित बोध में, वह बच्चे सहजता के साथ उसको कर पाएंगे। अब देखिए, सहृदयता किन किन गुणों को अपने भीतर समाहित करती है? प्रश्न। विकल्पों की भाषा भी उसी प्रकार की, औपचारिक शिष्टाचार को, आलोचना और सुधार को, सहानुभूति और सहयोग को, बार बार आया है गद्यांश में, वैश्विकता और धार्मिकता को। तो अब आप देखिएगा, कठिन हुआ क्योंकि शब्दावली उस प्रकार की आई है, उच्च कठिनाई स्तर आया, लेकिन हमारे बच्चे उसको कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको सामान्य कठिनाई स्तर करके वे तब उच्च कठिनाई स्तर पर आ रहे हैं। तो अभी आपसे आपके भी विचार जानूंगा कि क्या ये प्रयोग एक सफल प्रयोगों में गिना जाएगा? मैंने करवाया, पिछले वर्ष मैंने इस प्रकार के प्रयोग किए, तो बच्चों को सहज लगा गद्यांश। अब आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न, बहन थोड़ा पढ़िएगा। यदि किसी समाज में अधिकतर लोग सहृदय हो तो उस समाज की कौन सी संभावित विशेषता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? क, तकनीकी विकास में वृद्धि, ख, सामाजिक संपन्नता में बढ़ोतरी, ग, स्व उन्नति हेतु प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, घ, सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व का भाव। बहुत ही सुंदर। और उत्तर मिल गया होगा बहन, है ना? उत्तर हमें मिल गया। क्यों? क्यों मिला हमें उत्तर? क्योंकि हमारे बच्चों ने जब बच्चे पढ़ेंगे उसमें, तो उन्होंने चिन्हित किया, जैसे मैंने चिन्हित किया है, ऐसे ही हम बच्चों को सिखाएंगे कि चिन्हित कर लें। और जब वो पढ़ेंगे इस प्रकार के प्रश्न उच्च कठिनाई स्तर वाले, तो उनको कहीं ना कहीं वो जो अंडरलाइन करके आए हैं वो मुख्य बिंदुओं को, तो वो कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। अब सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व उनको यह सही लगेगा। अब बहुत सारी कठिन शब्दावली आई, लेकिन हमारे बच्चे उसमें से सही उत्तर को पहचान जाएंगे। तो हमें तैयारी इसी प्रकार करवानी है कि जहां कठिनाई स्तर हो, लेकिन सामान्य कठिनाई स्तर के बाद। अब देखिएगा आगे, कथन कारण को गहराई से पढ़कर इस पर आधारित सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। सहृदय व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, कारण वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है। तो अब हम क्योंकि लगा के एक बार देखते हैं। सहृदय व्यक्ति समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है क्योंकि वह अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी सोचता है। तो हमारा उत्तर मिल गया। हमारे बच्चे इस प्रकार प्रयोग करेंगे तो कहीं उनको उत्तर मिल जाएगा। अब आगे देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न देखिएगा। सहृदयता का सामाजिक व्यवहार में क्या महत्व है? तो अब स्तर बढ़ गया है ना, बच्चा प्रश्नानुकूल भाषा बनाएगा। तो सहृदयता सामाजिक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इससे व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को समझ पाता है और सहायता के लिए प्रेरित होता है। इससे समाज में आपसी विश्वास, भाईचारा और शांति का वातावरण बनता है, जो एक सशक्त समाज की नींव है। तो बच्चे को हम सिखा रहे हैं बेटा कैसे उत्तर लिखना है, प्रश्नानुकूल भाषा क्या होती है, हमारे
जो बोर्ड का जो कठिनाई स्तर होता है बेटा, वो अपठित बोध का किस प्रकार का होता है ना। हम सामान्य से होते हुए कठिनाई स्तर पर आए, उच्च कठिनाई स्तर पर आए। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, एक सहृदय व्यक्ति समाज में कैसे परिवर्तन ला सकता है। तो एक सहृदय व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है, उन्हें सहयोग प्रदान करता है, वह सामाजिक कुरीतियों के प्रति संवेदनशील होता है और उनके समाधान हेतु प्रयास करता है। इस प्रकार वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होता है। 2 बिंदुओं का उल्लेख और 2 अंक बच्चे को मिल जाएंगे। तो अब मुझे बताएं चैट बॉक्स में आके, सामान्यतः हम एक अपठित बोध में एक ही प्रकार के प्रश्न देना पसंद करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा यह प्रयोग कैसा लगा, क्योंकि आपकी मोहर, आप इसके पारखी हैं, आप भाषा के पंडित हैं। अगर आपकी मोहर लगती है ना किसी भी रणनीति पर, तो समझिए वो बिल्कुल फिर प्रयोग करने के लिए हम वो तैयार समझी जाती है। तो आप बताइए। मधुराय बहन जी जुड़ी हुई हैं, बहुत आपका स्वागत है बहन। श्वेता मैम बोल रही है बहुत मनीषा बढ़िया। बहन का बढ़िया सी टिप्पणी आई। पुष्पा बहन बहुत बहुत सुंदर है। आप सबका समर्थन मिल गया, सबकी मोहर लग गई है इस पर ना। अब यह प्रयोग करेंगे आप, है ना। ऐसे प्रयोग हमने सार्थक हिंदी व्याकरण 9th-10th में किए, जहां हमने एक ही उसको 2-3 उसमें किया। हमने उसमें सरल भी लिया एक जगह। तो सरल, सामान्य और उच्च कठिनाई स्तर, ऐसे होते हुए अगर बच्चा वहां तक पहुंचेगा ना तो समझ जाएगा। अब कठिनाई उसको लगेगा ही नहीं फिर कठिनाई, है ना। वो लेवल बांटना पड़ेगा, स्तर बांटना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बहन, आपने कहा अच्छा प्रयोग है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आप सब से संवाद हो रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अ, तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, अपठित बोध लिया, चाहे वो कोर्स ए हो चाहे बी हो, है ना। हमें करवाना है अपठित गद्या पद्यांश का भी अभ्यास इसी प्रकार करवाना है। अपठित पद्यांश में पहले सामान्य कठिनाई स्तर वाले प्रश्न, कोर्स ए वाले जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद में उसी पर आधारित उच्च कठिनाई स्तर वाले प्रश्न बना के हम बच्चों के सामने रखें। अगर ऐसा होता है तो हमारे बच्चे उसको मतलब सहज अधिगम हो रहा है और कौशल विकसित हो रहा है ना। जो उच्च चिंतन क्षमता का विकास होना चाहिए बच्चे के अंदर, वो दिखाई देगा धीरे धीरे करके। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते चले जाएंगे, 1 अपठित बोध, 2 अपठित बोध, 3 अपठित बोध, बच्चे का जो कौशल विकास है वो दिखाई देगा हमें, है ना। बच्चा सहजता के साथ अर्थ ग्रहण करने लगेगा। तो आप सबने समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आगे बढ़ते हैं। व्यावहारिक व्याकरण। देखिए, व्यावहारिक व्याकरण है और सबसे जरूरी है कि अगर हम पदबंध पढ़ा रहे हैं और बच्चे को संज्ञा का पता ही नहीं है, सर्वनाम का नहीं पता है, उसको विशेषण वो जानता नहीं है, क्रिया नहीं जान पाता है, बीच में भी आ रही है उसको वो मुख्य क्रिया मान ले रहा है, और क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी नहीं, तो पदबंध पढ़ाया कैसे जाएगा। तो मेरा निवेदन है, पदबंध पाठ्यक्रम में या कोई भी, मतलब पदबंध तो हम एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर ले रहे हैं। अब मान लीजिए कोर्स ए में है तो वहां पर पद परिचय जैसे है, कैसे पढ़ाएं, पद परिचय कैसे पढ़ाएं। अगर बच्चा नहीं जान पा रहा है संज्ञा क्या है या सर्वनाम क्या है, विकारी अविकारी का पता नहीं है उसको, सबसे पहले ना सरलता से शुरू करें। जैसे अभी हमने अपठित बोध में किया, हमने सामान्य कठिनाई स्तर के प्रश्न लिए, उसके बाद हम आए उच्च कठिनाई स्तर पर। इसी प्रकार व्यावहारिक व्याकरण है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम का परिचय दिया बच्चों को। और परिचय ये नहीं, एक बार रिवाइज करवाना। एक तरफ हमने संज्ञा शब्द लिख दिए कि बेटा जो भी नाम है ना बेटा, वो संज्ञा होता है ना बेटा। नाम के बदले जो नाम होता है वो सर्वनाम होता है। क्या क्या शब्द होते हैं बेटा, मैं, हम, आप, तुम, वह, कोई आदि, है ना। और संज्ञा शब्दों में क्या होगा बेटा, पेड़, डाली, फूल, पुस्तक, दरवाजा, मेज, रात, प्रस्तुति, मेहनत, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई, है ना, हरियाली। ये बेटा संज्ञा शब्द है। अब ये पता चल जाएगा ना, तो तब वो पढ़ाई को संज्ञा मान पाएगा। अगर हमने अब दे दिया मेहनत, मन से की गई पढ़ाई अच्छे अंक लाने में सहायक होती है, तो अब हमारा बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, भ्रमित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है पढ़ाई शब्द संज्ञा है ना।
तो कहीं ना कहीं जो आधार है, आधारभूत ज्ञान है, उसको कहीं विषय प्रवेश में परख ले। तो एक रणनीति हमारी किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा करवाने के साथ साथ अधिगम सहज बनाने की जो रणनीति है, उसका ये सरल से कठिन की ओर आए। जो आधारभूत अवधारणाएं हैं उनकी उपेक्षा ना करें। अगर इन इन अवधारणाओं की उपेक्षा कर दी गई तो सिर के ऊपर से उतर जाएगा पदबंध। अब संज्ञा सर्वनाम आ गया, बच्चे ने सहजता के साथ बच्चे से कहा बेटा इतना सरल है, उसके सामने सरल रूप रखना है। बेटा ये कब पढ़ के आया आप? थर्ड में, फोर्थ में, है ना? अब हम कब पढ़ा रहे हैं? अब हम 10th में पढ़ा रहे हैं बेटा, है ना? आपको आता है ना, नाम संज्ञा होता है बेटा, नाम के बदले नाम सर्वनाम होता है। बच्चे को एकदम वो रिवाइज हो जाएगा, उसको वो अवधारणा आ जाएगी, तब हम पदबंध पढ़ाएंगे। अब विशेषण शब्द क्या क्या है? नेक, मददगार, सुंदर, शक्तिशाली, भव्य, आकर्षक, रोचक, और पदबंध के हिसाब से बेटा वाला वाली भी, है ना? रोचक कहानियों, मान लीजिए मैंने कहा रोचक कहानियों से भरी पुस्तकें, तो पुस्तकें आया तो संज्ञा पहचान गया, उससे पहला भाग भी बेटा विशेषण विशेष्य के रूप में होता है, तो भरी तक भी बेटा विशेषण आ जाएगा। और परिश्रम करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते, तो वाला वाली जब भी आएगा वहां तक आगे की तरफ संज्ञा हो तो वह भी बेटा क्या बनेगा? विशेषण बन जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम शीर्ष पद से पहले आने पर। अब कीमती लकड़ी से बनी मेज, तो कीमती लकड़ी से बनी भी ये पद वो विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार हमने बच्चों को पहले एक आधारभूत ज्ञान दे दिया। इसके बाद क्रिया शब्द, 2 से अधिक क्रियापद वाले हमने दिए। यहाँ पे संयुक्त क्रियापद, जागा हुआ था, आया करता है, कर लिया होगा, बोलता चला जा रहा था। अब बीच में नहीं रेखांकित करेगा वो, क्योंकि उसको पता है बाद में आता है। तो एक आधार वाली चीजें सबसे पहले करवाएं, उसके बाद पढ़ाना शुरू करें पदबंध, अब सहज हो जाएगा। अब क्रिया विशेषण में क्या क्या शब्द आते हैं? बच्चे को बताया बेटा क्रिया की विशेषता, एडवर्ब आपको बताया क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करता है ना? जोर जोर से, जल्दी जल्दी, तेज तेज, चुपके चुपके, ये सब सकुचाते हुए, दौड़ते हुए, उल्लास से भरकर, सहजता से विचार करके, आदि आदि, भरोसे के साथ, आदि आदि, है ना? तो अब हम सिखाएं कैसे? अब इसको हमने सिखाना शुरू कर दिया। एक वर्कशॉप व्याकरण पर आधारित अगले मंथ करते हैं, उस पर मैं विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा। आज तो केवल पाठ्यक्रम को कैसे, किस रणनीति को अपनाकर पाठ्यक्रम सहज बना जाए उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, नवाचार हुआ, यहां पर नवाचार आया। एक ही बोर्ड में सब कुछ है। अगर शीर्ष पद संज्ञा हो तो पूरा पद संज्ञा पदबंध कहलाएगा, पूरा पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाएगा। अगर शीर्ष पद सर्वनाम, सर्वनाम कौन से शब्द? अब यहां पर है, यहां से वो बच्चा देखे हुए है, मैं, हम, आप, तुम, वह, आदि, तो अब उसको आसान हो जाएगा। अगर शीर्ष पद सर्वनाम है हो तो सर्वनाम पदबंध होगा। संज्ञा व सर्वनाम पदबंध में संज्ञा व सर्वनाम शीर्ष पद हटाने पर विशेषण पदबंध। जैसे लहलाती हुई हरी भरी फसलें, तो फसलें हटा दें तो लहलाती हुई हरी भरी विशेषण। वाला वाली से अंत होने वाले पद समूह सामान्यतः विशेषण होते हैं, अगर आगे की तरफ उनकी संज्ञा होती है। 2 या 2 से अधिक क्रियापद मिलकर क्रियापद बंध बनाते हैं। देखिए सब कुछ एक बोर्ड पे है, क्योंकि हम उनका आधार पहले से ही आधारभूत ज्ञान की परख कर चुके, उनसे चर्चा कर चुके विषय प्रवेश में, तो अब सहज है। क्रिया में कैसे लगाकर जो उत्तर प्राप्त होता है वह पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध होता है। यह कक्षा मन लगाकर एकाग्रता के साथ पढ़ती है। कैसे पढ़ती है? मन लगाकर एकाग्रता के साथ। तो आ गया, तो सब कुछ एक बोर्ड पर आया, सहज हो गया। तो एक पाठ्यक्रम सामने रखें, जो भी विषय है उसमें निर्धारित, उनको पहले थोड़ा चिंतन मनन करें, सरल से कठिनाई की ओर लेकर आए या रणनीति अपनाएं। लेकिन बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, सरल से कठिन की ओर आए और साथ में आधारभूत ज्ञान की परख कर लें। उस प्रकरण से जुड़ा हुआ आधारभूत ज्ञान बच्चों को है या नहीं है। तो हम पाठ्यक्रम अ पढ़ा रहे, मान लीजिए हमें पद परिचय करवाना है, हम सहजता के साथ उनको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ऐसे ही बॉक्स बना बना के, जरूरत नहीं है बहुत अधिक परिभाषाओं में उलझाने की, बस एक आधारभूत ज्ञान उनके पास होना चाहिए। क्या क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक क्या है, संबंध बोधक क्या है, विस्मयादि बोधक क्या है। अगर ही आ गया किसी वाक्य में बेटा उसको क्या लिखेंगे, क्या करता है, इसको और क्या कहते हैं निपात के अलावा,
अवधारक शब्द भी कहा जाता है, अवधारणात्मक शब्द भी कहा जाता है ना। क्या कार्य करता है, वाक्य के अर्थ को बल प्रदान करता है, ये सारी चीजें सहजता के साथ शुरू में पहले बता दें। उसके बाद पद परिचय करवाएंगे। एक कोर्स का भी बहुत, मतलब कोर्स कोई भी हो, ए हो, बी हो, 9th में पढ़ा रहे हो, 10th में पढ़ा रहे हो, एक योजना, एक रणनीति बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो सहज हो जाएगा, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले उस पर चलते हैं। देखिए गीत में भी आप सुनना चाहेंगे इसको, पदबंध को, ये रणनीति का हिस्सा है। देखिएगा हर एक पंक्ति में पदबंध होगा और गीत है ना, कविता है। सड़क किनारे खड़ा पेड़ छाया है सबको देता। कैसा पेड़, सड़क किनारे खड़ा, तो सड़क किनारे खड़ा विशेषण, और सड़क किनारे खड़ा पेड़ संज्ञा पदबंध। और तन की मन की सभी थकावट, तो कैसी थकावट, तन की मन की सभी, पल भर में हर लेता, सर्दी घाम में से उपजे कष्ट सदा सहता है। कैसे कष्ट, अब देखिए बच्चों को पता चल रहा है कैसे से प्रश्न हो रहा है, शीर्ष पद से उत्तर मिल रहा है, तो जो उत्तर मिल रहा है वो विशेषण है, और जो पूरा पद समूह वो संज्ञा का रूप ले रहा है। क्यों, क्योंकि थकावट भी संज्ञा, कष्ट भी संज्ञा, पेड़ भी संज्ञा। अब आगे, सहनशील पर हितकारी वह कभी न उफ कहता है। कैसा वह, सहनशील पर हितकारी, वह किस में आया, सर्वनाम में। तो सदा फूल फल देने वाला वह मुस्काता रहता, तो सदा फूल फल देने वाला वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम पद, मुस्काता रहता क्रिया। अंधड़ में साहस के संग हंस हंस कर गाता रहता, तो साहस के संग हंस हंस कर, तो कैसे गाता रहता, क्रिया की विशेषता, साहस के संग हंस हंस कर, क्रिया विशेषण, गाता रहता क्रिया। मानव भीतर भीतरता का भाव अगर खिल जाए, अंत में आया खिल जाए, दो पद हो गए क्रियापद, क्रियापद बन। यह जग सारा फूलों के सम खिल खिल कर मुस्काए, तो कैसे मुस्काए, फूलों के सम खिल खिल कर। तो देखिए कितना सहज हो गया अभ्यास। पूजा बहन, अच्छी चर्चा चल रही। जी सर, आप कमेंट आया है, राजकुमारी मैम जी ने बोला है कि आपका जवाब नहीं सर, अति सुंदर। और बहन बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी बहन। रियलमी के नाम से आईडी है सर, आप वो बोल रहे हैं सर आप ऑफलाइन क्लास जरूर लें, जैसे आपने एमरल्ड हाइट्स में ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन किनका है ये मैसेज। सर नाम तो नहीं है, जो है नाम वो नहीं नहीं, रियलमी के बिल्कुल नाम से है सर। बिल्कुल ऑफलाइन के लिए आएंगे, वहां आएंगे, है ना। जी जी। सर हाँ, सेजल मैम बोल रही हैं कि रिक्वेस्ट है कि एक इसकी अलग से क्लास ली जाए, वर्कशॉप इन। बिल्कुल हाँ सर। बिल्कुल। सलाम सर, एक व्याकरण की, सलाम सर, एक व्याकरण की भी क्लास रखते हैं, एक वेबिनार रखते हैं अगले मंथ, जिसमें बिल्कुल व्याकरण बिल्कुल। पर हम चर्चा करेंगे। ओके ओके। जी जी जी। आगे बढ़ते हैं, आप सबका समर्थन मिला, अच्छा लगा। अंजू बहन भी जुड़ी हुई है जयपुर से, आपका भी अभिनंदन है बहन, अभी आपका मैंने मैसेज देखा। आगे बढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद एवं रूपांतरण, देखिए सिलेबस में है, सिलेबस में है, तो आज हम केवल उस पर उसकी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे सहज बनाया जाए। तो इसमें भी हम पहले वाक्य को, और जब एक बार सिलेबस व्याकरण का समय से पहले समय से करवा लें, ये नहीं कि हम बाद तक उसको जो 3 या 4 प्रकरण मिले हुए हैं उसको बहुत लंबा खींचेंगे। क्यों, क्योंकि व्यावहारिक व्याकरण है, हम फिर पाठ से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। तो 1 महीने में, 2 महीने में हम व्याकरण के सभी प्रकरण करवा लें, यह भी हमारी एक रणनीति का हिस्सा है, पाठ्यक्रम को बहुत सहजता के साथ करवाने के लिए, क्योंकि फिर हम पाठ से जोड़ पाते हैं। मान लीजिए मैंने बड़े भाई साहब पाठ पढ़ा दिया, उससे पहले मैंने पदबंध सिखा दिया है, तो मैं पाठ के बीच में आए पदबंधों को, क्योंकि क्रिया पदबंध का लाजवाब उदाहरण है उसमें, है ना, तो हम सहजता के साथ करवा पाएंगे। अगर हमने तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास सिखा दिया है पहले, तो उसमें सहजता के साथ हम कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन यही है, हम व्याकरण के तीनों प्रकरण 2 महीने में अगर हमने करवा लिए, तो उसके बाद जो पाठ आएंगे, या जब हम पुनरावृत्ति करवाएंगे पुराने पाठों की, जैसे बड़े भाई साहब की, या डायरी का एक पन्ना, तो या हम 9th में पढ़ा रहे हों, तो 9th में दुख का अधिकार को जब हम करवा रहे होंगे, या एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तो हम
उपसर्ग को ले सकते हैं, गिल्लू पढ़ा रहे होंगे तो हम उपसर्ग वहां पे ले सकते हैं, प्रत्यय ले सकते हैं, है ना। अनुस्वार अनुनासिक में अंतर हम करवा सकते हैं। तो एक योजना बनानी पड़ेगी पाठ्यक्रम के हिसाब से, कैसे हम व्याकरण को व्यावहारिक व्याकरण में बदलें, कैसे हम पाठों से उसको जोड़ दें, तो सहज हो जाएगा। अगर हम कोर्स ए में पढ़ा रहे हैं तो जो भी विषय हमें मिला हुआ है, जो भी प्रकरण हमें मिला हुआ है, उसको कैसे हम सहजता के साथ उसमें ला रहे हैं। हम कैसे अगर काव्य पढ़ा रहे हैं तो उसमें कैसे अलंकारों को हम सिखा रहे हैं। तो ये सारी एक रणनीति हमें बनानी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी। योजना बन जाएगी, सहज हो जाएगा। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद देखिएगा आप। देखिए कैसे सहजता के साथ पूरे बोर्ड पर सब कुछ आ गया है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और 40 मिनट की कक्षा, है ना। एक प्लानिंग, एक योजना, उसके बाद जाके बच्चों के साथ संवाद, उसके बाद लगातार हम बच्चों से संवाद करते हुए लिख डालें, सूत्र बता दें, सहज सूत्र बता दें। तो 40 मिनट की कक्षा में संभव हो पाता है, लेकिन इससे पूर्व हम थोड़ा पढ़ा चुके हों। जब हम रिवीजन के लिए जाएं तो उस समय ऐसे कार्य बहुत निकलते हैं। आपने एक बार थोड़ा परिचय दे दिया, सामान्य परिचय ही आपने दिया, एक बार आपने मौखिक दे दिया, उसके बाद जब अगली कक्षा में आप जाएंगे ना तो बोर्ड पर कार्य दिखाई देगा। वो 40 मिनट में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन पूर्व में थोड़ा सा परिचय बच्चों को होना चाहिए कि सरल वाक्य क्या होता है, थोड़ी सी पहचान हो, संयुक्त वाक्य क्या होता है, उसकी थोड़ी पहचान, उसके बाद गहराई फिर आए, फिर मिश्र वाक्य में थोड़ा सा पता हो, फिर आप सूत्र के सहारे समझाएं। तो आपने देखा यहाँ पे सब कुछ है ना। तो मेरा निवेदन यही है, आप सब अनुभवी हैं, निष्ठावान हैं, कि सिलेबस को हम आत्मसात कर जाएं। आत्मसात करने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें प्रकरणों का पता चले, उस प्रकरण पर हमारा शोध हो। अभी जब गीत हमने कहा था उसमें आया था अन्वेषण, अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है, और अनुसंधान के लिए प्रेरित करता है ना। और अगर शिक्षक का शौ देखें ना हम, शिक्षक का शौ, तो वो शोध के लिए प्रेरित कर रहा है। तो सब कुछ है, शोध, अनुसंधान, अन्वेषण, है ना, उसी से हम जुड़े हुए हैं। तो हम उस सिलेबस को आत्मसात करके थोड़ा सा अन्वेषण करें, थोड़ा सा सोचें। शोधात्मक अभिरुचि हमारी है सबकी, हम जितने यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो शोधात्मक अभिरुचि है और अध्येता भाव है हमारे अंदर, नहीं तो जुड़ नहीं पाते। इस समय 250 के करीब हम जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़ पाते। अगर हमारे अंदर वो सीखने का भाव नहीं हो, अध्येता भाव नहीं हो, अन्वेषण हमारे अन्वेषणात्मक अभिरुचि ना हो, है ना, शोधात्मक अभिरुचि ना हो, तो नहीं होगा। तो उस शोधात्मक अभिरुचि से एक बार सोच के देखें, रणनीति आएगी, रणनीति बन जाएगी कैसे पढ़ाना है कक्षा में जाके, है ना। तो ये उसी रणनीति का हिस्सा है, इस पर चर्चा करेंगे, है ना, आगे। लेकिन हमें हर प्रकरण को, व्यावहारिक व्याकरण को इसी प्रकार पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर इस पर चर्चा करेंगे हम अगले मंथ, कैसे हम इसको पढ़ाएं, क्या जो नया पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से कैसे सिखाएं, कैसे हमें उद्देश्य और विधेय सिखाना है ना, कैसे कारण लिखना सिखाएं। अगर बच्चे को हम उवी याद करवा दें, जैसे यहाँ ग्रीन में लिखा हुआ है उवी, तो बच्चे को कारण पता चल गया। अगर उसको सरल की पहचान हो गई ना, अगर हमने कहा अध्यापक जी ने कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया, उसको पता चल गया सरल है, क्योंकि एक उद्देश्य एक विधेय है, मुख्य क्रिया एक दिखाई दे रही है। अब उसको उत्तर लिखने में परेशानी नहीं, उसको उवी याद आ जाएगा। उवी याद आ जाएगा तो उद्देश्य याद आ जाएगा, विधेय याद आ जाएगा, उसका उत्तर बन जाएगा कारण। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय। तो ऐसी सरल युक्तियां, थोड़ा शोध करके नवाचारी युक्तियों से जब हम अपने पाठ्यक्रम को सजाएंगे, पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया बोर्ड ने, उसका उसका अध्यापन करना है, उसका अधिगम सहज बनाना है, उसमें नवाचार करना है, तो उस नवाचार को करें, अधिगम सहज हो जाएगा। देखिए उवी यहां पर आया, इसके बाद आगे बढ़े तो स्व उप आया। स्व उप का अर्थ हो गया दो स्वतंत्र उपवाक्य संयुक्त वाक्य में होते हैं, तो उससे उत्तर लिख देगा। इसी प्रकार मिश्र वाक्य में आप्र आया, यानी आश्रित और प्रधान उपवाक्य। तो जब हम इस पर कार्य करेंगे, गहराई से चिंतन करेंगे, तो हमारा जो निर्धारित जो पाठ्यक्रम है ना, सहज होता चला जाएगा। जितना हम उसको आत्मसात कर पाएंगे उतना वो सहज होगा। हमें आत्मसात करना है, केवल पाठ्यक्रम जारी हुआ हमने पढ़ा नहीं, हम करते भी नहीं है ऐसा।
हम जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं 256 के करीब, हम में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा करता है। हम उसको आत्मसात करते हैं। आत्मसात करते हैं तो हमारे बच्चे अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि अधिगम सहज हो जाता है ना। आगे बढ़, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको भी गीत के माध्यम से सुनाओ। आप देखिएगा, गीत सुनिए। एक उद्देश्य और एक विधेय संग वाक्य सरल कहलाता है। एक मुख्य क्रिया बस देखो यह पहचाना जाता है। धातु रूप में ते ही ने से ने पर कर इसमें आते। जोड़ स्नेह के सरल भाव से सरल वाक्य को है बातें। करता देखा क्रिया देख ली सरल सरलता से आया। इसे समझने में थोड़ा भी सिर अपना ना चकराया। और अतः लेकिन अथवा या ना तो ना ही या तो या और बल्कि भी संयुक्त वाक्य में अब इसमें संदेह है क्या। वाक्य जोड़ते जब ये योजक संयुक्त वाक्य तब हो जाता। अगर लोप भी हो इनका तो संयुक्त वाक्य ही कहलाता। चक यदि से है मिश्र वाक्य इसकी पहचान सरल होती। सूत्र याद हो जक यदि तो फिर सारी मुश्किल हल होती। जो जिसने जिसको जिससे जिसकी जिस पर जिसमें आए। जब जब जहां जहां जैसे ही जो ही में जो मुस्काए। कि क्योंकि ताकि से भी यह मिश्रित पहचाना जाता। यदि तो यद्यपि आए तब भी मिश्र वाक्य है कहलाता जी। मिश्र वाक्य है कहलाता जी। मिश्र वाक्य है कहलाता। तो सहजता के साथ ये पहचान हो जाएगी। पूजा बहन, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और आपके लिए कुछ प्रश्न भी आए थे सर, मैं जी जी। पढ़ूँ? जी सर। हाँ हाँ बिल्कुल। जी सर। सर यहाँ पे सर ये प्रश्न है कि क्या छंद और अलंकार पढ़ना जरूरी है क्या? देखिए, अलंकार पढ़ना हाँ, आवश्यक कोर्स होगा ए क्या? है। सुशीला मैम। कोर्स बी में हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि कोर्स बी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन कोर्स ए में हम, और देखिए बोर्ड ने भी निर्धारित कर दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि विस्तार अलंकारों का विस्तार दिया हुआ है या छंदों का विस्तार दिया हुआ है। लेकिन जहां तक संभव है हमें थोड़ा परिचय देना चाहिए, है ना। और सहज रूप में देना चाहिए। मान लीजिए कहीं सासी से सम आ रहा है तो बच्चे को बता दिया बेटा उपमा है, क्यों है उसको बता दिया सहजता के साथ। रूपक कहीं आ रहा है तो उसको बताया। अनुप्रास आ रहा है, अनुप्रास के अलंकार और अनुप्रास अलंकार के आपने अधिकाधिक उदाहरण आपने छांट लिए हैं, तो परिचय हमें दे देना चाहिए, है ना। तो सहजता के साथ हो, शास्त्रीय रूप में जितना करेंगे बच्चे के सिर के ऊपर से उतरेगा, नीरस हो जाएगा। शास्त्र को व्यवहार का तड़का लगा के, नवाचार का तड़का लगा के अगर हम बच्चों के सामने रखेंगे, बच्चे फिर उसको स्वीकार करेंगे। अब मान लीजिए हम उदाहरण दे रहे हैं, हम कह रहे हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो पौ की आवृत्ति हो रही है ना। बच्चों से ऐसे ही संवाद कर रहे हैं हम, बेटा पौ की आवृत्ति में मजा आ गया, है ना, आनंद आया, देखना पौ कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसी चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल। तो चौ की आवृत्ति हो रही है ना। रघुपति राघव राजा राम, रौ की आवृत्ति हो रही है ना। तो इस प्रकार अगर हम कह रहे हैं तो, और बच्चों के साथ में अधिकाधिक उदाहरण हमारे पास हैं, तो फिर सहज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सहज रूप में परिचय देते हुए चलें तो अच्छा लगेगा, है ना। तो जी मुझे सर। विश्वास है आप मेरी बात से सहमत होंगे। हाँ सर वृंदा सिंह मैम बोल रही हैं, सर हैदराबाद में जब आएंगे तो शेयर करिएगा प्लान। बिल्कुल, आना होगा। और निश्चित रूप से बहन वहां पर इस प्रकार की हम रणनीति पर विचार करेंगे, है ना। जी सर। सर जानवी मैम का प्रश्न है, ग्रामर क्लास 9th एंड 10th के लिए रेफरेंस बुक बताइए सर। रेफरेंस बुक तो अब मैं, देखिए मैं अभी कहता चला आ रहा हूँ, आपकी अपनी पुस्तक है सार्थक हिंदी व्याकरण। आप लेंगे ना तो उसमें वो जो मैंने अपठित बोध से शुरू किया है ना, तो वो बड़ा सहज हो जाएगा क्योंकि उसमें मैंने 2-3 लेवल दिए। जैसे पहले सरल, फिर सामान्य, फिर उच्च चिंतन क्षमता वाला। इसी प्रकार ये जो गीत मैंने सुनाया ये सब उसका सार्थक हिंदी व्याकरण का है। तो आप एक बार 9th-10th का सार्थक हिंदी व्याकरण लेके देखिएगा, है ना। तो आप गूगल पे भी डालेंगे तो आ जाएगा, तो लिंक मिल जाएगा। तो आप उसको देख सकते सर श्रीदेवी मैम का प्रश्न है, इस बार एमसीक्यू होगा क्या सर ग्रामर में? हैं। ग्रामर में एमसीक्यू नहीं होगा।
वो जो पहले वाले ही वो है, तो एमसीक्यू नहीं होगा उसमें। पैटर्न पर अब थोड़ी चर्चा, परिवर्तन पूछ रही हैं सर। एमसीक्यू ग्रामर में नहीं होगा, है ना। अब आगे बढ़े, जी सर। थोड़ा अब चर्चा कर लेते हैं। जी जी। अब देखिए, समास, समास के लिए हमारे पास क्या उपाय होना चाहिए। समास को हम, इसमें भी हम ना सरल से कठिन की ओर जाए। जैसे मान लीजिए सरल, हम कैसे करें। सबसे पहले हम द्वंद्व समास ले लें। द्वंद्व में होता है जोड़ा, तो हम अगर जोड़ा ले लेते हैं तो बच्चा सहजता के साथ समझता है। तो हम ऐसा ना करें कि अव्ययी भाव से पढ़ाना शुरू करें, अव्ययी भाव से नहीं पढ़ाएं, अव्ययी भाव कठिन हो जाएगा उसके लिए। हम हमने यहां पर भी देखिए अपने हिसाब से निर्धारित किया है ना, हम कैसे उसको करवाएं बच्चे को। अब अगर अव्ययी भाव हमने पढ़ाना शुरू किया तो निश्चित रूप से कहीं अरुचि हो जाएगी। बच्चा जो औसत बच्चे भी है ना, वो भी बहुत अधिक रुचि नहीं लेंगे। और हमने यहीं से शुरू किया, हमने कहा बेटा इतना सरल है, द्वंद्व की स्पेलिंग भी जोड़ा बना रही है, द्वा द्वा जोड़ा। जैसे चाय कॉफी माता पिता और या आता है, बस बेटा इतने में ही द्वंद्व समास है। बाद में परिचय दे देंगे बेटा इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, कठिनाई स्तर भी बढ़ाते चले जाएंगे। सत्य असत्य, बेटा देखा विलोम बन रहा है, संधि करके अलग अलग करके देखें, सत्य प्लस असत्य, चर प्लस अचर, हित प्लस अहित, ऐसे करके देखें, है ना। तो हम कठिनाई स्तर की भी ओर ले गए, लेकिन शुरुआत हमने द्वंद्व से की। उसके बाद कारक चिन्ह जान चुके हैं, वो 9वीं तक पढ़ के आए, तो कारक चिन्हों वाला समास हमने तत्पुरुष ले लिया। इसके बाद में वो गिनती जानते हैं, हमने गिनती वाला समास ले लिया, यहाँ गिनती वाला समास ले लिया। अब हम जब बच्चे 3 समास समझ गए, तब हम अव्ययी भाव पर आए हैं और कहा बेटा ये भी बहुत सरल है। सेलेक्टेड उपसर्ग हैं, पुनरुक्त शब्द हैं, जैसे गांव गांव, पल पल, नगर नगर। और पहला गांव गांव नहीं है, पहला शब्द हर का पुट देता है, चाहे वो गांव हो, चाहे पल हो, चाहे नगर हो। और पुनरुक्त शब्दों में ओ या आ की वृद्धि, है ना। तो ऐसे करके हमने सिखा दिया यहाँ अव्ययी भाव। इसी प्रकार कर्मधारय समास हमने बताया, उस प्लानिंग की, शोध किया, है जो कहाँ आता है, रूपी कहाँ आता है, के समान कहाँ आता है, क्या उपमेय उपमान होता है, और उपमेय उपमान का संयोग होता है तो हम क्या लिखते हैं, रूपी लिखते हैं। उपमान पहले आ जाए तो क्या लिखेंगे, उपमान के साथ में के समान जुड़ता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। अगर हम यहाँ कहें क्रोध, क्रोधाग्नि, तो क्रोध रूपी अग्नि। क्यों आया रूपी, क्यों इसलिए आया क्योंकि उपमेय पहले है, उपमान बाद में। तो ये शोध है, जब हम हमारा शोध गहराएगा तो नवाचार होगा, सहज हो जाएगा, बच्चे के हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास होगा। तो थोड़े सा हम तैयार करके जाएं, और हम सब निष्ठावान हैं, हम तैयारी के साथ ही कक्षा में जाते हैं। हम जितने जुड़े हुए हैं भाई बहन यहाँ पर, हम सब पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, तो कहीं कठिनाई नहीं है। सिलेबस के हिसाब से बस हमें अपनी रणनीति तैयार करनी है, उस रणनीति के तहत काम करना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा संधि पढ़ा रहे हैं हम 9th में। हमने नवाचार कर डाला, नवाचार कर डाला, उस आकृति को बनाने के लिए बच्चा खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है, खेल रहा है। आकृति कैसे आकार लेगी, बेटा मुझे ऐसी आकृति चाहिए, ये वाली आकृति चाहिए, ये बहुत सुंदर लग रही है बेटा। अब अच्छा थोड़ा सा बदल के आकृति बनाते हैं इसमें। ये देखिए आकृति बनाने के लिए खेल रहे हैं। पहले में अ आ का मेल, हिम प्लस आल है, पता चल गया उसको, यहाँ अ है यहाँ आ है, ये काट दिया। दूसरे में विद्या प्लस अर्थी, अब आ से अ कटा, तो आ ये है, ये अ कट गया। आकृति आकार देखिए कैसे आकार ले रही, बच्चे खेलते हैं इसमें। अगर यही शास्त्रीय आधार पर पढ़ाया, देखिए है शास्त्र हमारा आधार, शास्त्र प्रणम्य है ना, बस उसको व्यवहार में पिरोना है। व्यवहार में पिरोया, नवाचार में पिरोया, सामने रख दिया बच्चे के, अधिगम सहज हो जाएगा। सबसे पहले शास्त्र को आत्मसात करना है, फिर नवाचार विकसित होगा, फिर खेल भी पाएंगे। कहाँ संधि है, कहाँ हम आकृतियां बना रहे, आकृति बना के खेलेंगे बेटा, बढ़िया सी आकृति आनी चाहिए, है ना। फिर होमवर्क भी दे दिया, बेटा आकृति बना के लाएं। उदाहरण आपकी, आप बुक भी खोल लें, सपुस्तकीय प्रणाली की तरह करेंगे कार्य, है ना बेटा। आप सपुस्तकीय प्रणाली की तरह करेंगे, आप अपनी बुक खोलना बेटा, बस आपको आकृति बनानी है, उसमें से उदाहरण चुन लेना,
उसमें देखना कहाँ कट रहा है, वो उसी से आप काट लेना। ऐसे करके देखेंगे किसकी आकृति सुंदर आती है ना। तो खेल रहे हैं। तो पाठ्यक्रम को सामने रखना है, नवाचार करना है ना, सहज बनाना है, अधिगम सहज बनाने का संकल्प लेना है। और जो गीत मैंने प्रारंभ में सुनाया, उसके एक एक गुण को कहीं आत्मसात कर लेना है। और वो हमारे अंदर है, हम सब भाई बहनों के अंदर है ना। एक और इस समय शिक्षण पे बात जब चल रही है, शिक्षण वैसे अलग ही है ना, पूजित है एकदम। तो उसको कहीं अगर आत्मसात कर ले हम, तो बहुत सहज हो जाएगा, है ना। तो हमें करना है ये कार्य, और जैसे जैसे गहराता जाएगा और संकल्प हमारा दृढ़ होता चला जाएगा, सब कुछ सहज होता चला जाएगा। और चार पंक्तियां आपके लिए सुना रहा हूं, देखिएगा। कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं लेगा, कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं लेगा, यूं बैठे रहेंगे तो हमें कुछ न मिलेगा, यूं बैठे रहेंगे तो हमें कुछ न मिलेगा, गर तेज हवाओं से डरेंगे तो हार है, गर तेज हवाओं से डरेंगे तो हार है, यह जिंदगी का फूल तो आंधी में खिलेगा, यह जिंदगी का फूल तो आंधी में खिलेगा, यूं बैठे रहेंगे तो हमें कुछ न मिलेगा। तो हाथ पे हाथ धर के हम बैठते भी नहीं है ना, हम सब। तो ये जो वास्तव में जो जिंदगी का फूल है ना, और हम जो कार्य कर रहे हैं ना, वो तो अलग ही है, उसमें चुनौतियां हैं। वो आंधी में फूल खिलाने जैसा है ना। और वो फूल हम खिला रहे हैं अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, है ना, अपने शोध से, अपने अध्येता भाव से। तो वो खिल रहा है, तो खिलाना है ना। मतलब चुनौती भरा क्षेत्र है, लेकिन अब ये बताइए, मुक्तक किस किस को अच्छा लगा? जी, अंजू बहन को अच्छा लगा, और शाइस्ता बहन, जयश्री बहन, अच्छा लगा आपको, और अरे वाह, बहुत अब तेजी के साथ। तो रानी मैम बोल मोइनुद्दीन जी रही को, हैं, आप रेनू कहीं रेनू एक बहन शब्द जुड़ी हुई हिंदी हैं भाषा के लिए शारजा प्रयोग से, उनको अच्छा लगा, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है बहन। अब तो बहुत तेजी के साथ जा रहा है ये, उसमें डॉक्टर शालिनी जी जी जुड़ी हुई सर। है। हाँ जी, रीता सिंह बहन, और अब बहुत तेजी के साथ संध्या मोल जी जुड़े हुए हैं केरल से। हाँ जी, आप सबका हृदय से आभार। बहुत आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रयोग है ना। पाठ्यक्रम आत्मसात हुआ, पाठ्यक्रम को पढ़ा, उसके बाद में फिर ये प्रयोग हुए, तो प्रयोगों से सहज बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिएगा, विनी आई विप्र संग संग, इसके सहारे हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करवा देंगे। पूरा चैप्टर 2-3 पेज का, जब उसको खेलने वाले मूड में आए, नवाचार वाले मूड में आए, तो उसको एक बोर्ड पर समेट दिया, है ना। फिर बच्चे खेल रहे हैं, तो ऐसे ये वाले प्रयोग। उपसर्ग पढ़ा रहे हैं, उपसर्ग पढ़ाते समय किसी भी उपसर्ग से 2 शब्द बनाने बच्चे को कठिन पड़ते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जब मैंने खेल खिलवाना शुरू किया, तो अ उपसर्ग से एक सेक्शन ने 48 बनाए, 48 शब्द बनाए। दूसरे सेक्शन बढ़िया खेला दूसरा सेक्शन, लेकिन वो 43 पे रुक गया, है ना, 43। लेकिन 43 भी शब्द होते हैं, तो खेलना है। कहाँ तो 2 शब्द भारी पड़ते हैं, कहाँ 48 बोर्ड पर आ गए, और दूसरे सेक्शन में 43। तो ऐसे करके खेलना है, पाठ्यक्रम को आत्मसात करवाना है, अधिगम सहज बनाना है, सब कुछ होगा, है ना। तो आज का विषय बहुत अच्छा है ना, लाजवाब विषय है, और उस पर हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिएगा, मुहावरे भी इसी प्रकार थोड़े थोड़े करवाते चले, पाठ के हिसाब से करवाएं, पाठ के हिसाब से हम करवाते हुए चलें, तो सहज हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, आड़े हाथों लेना, बड़े भाई साहब पाठ में आया, है ना। फूटी आंखों नहीं सुहाना, हरिहर काका पाठ में आया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो वह भी आया। आंखों में धूल झोंकना, कारतूस में आया। आग बबूला होना, है ना, ततारा वामिरो कथा में आया। आटे दाल का भाव मालूम होना, बड़े भाई साहब में आया।
तो कहीं ना कहीं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग प्रेमचंद जी ने किया है। वहां से 80 मुहावरे निकाले। खून जलाना, आटे दाल का भाव मालूम होना, है ना, और बहुत सारे मुहावरे वहां पर हैं। जी ललचाना, जगह जगह एक एक लाइन में कई कई मुहावरे आए हैं। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, आदि आदि, है ना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा चोट निशाना पड़ना, दो मुहावरे प्रयोग किए एक ही भाव के लिए। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा चोट निशाना पड़ना। तो ये लाल पीला होना, आदि आदि। तो ये आ, हम करवाते हुए चले। अब हम साहित्य पर आ गए, है ना। डॉक्टर शालिनी भार्गव बहन का हाथ उठा हुआ है, लेकिन बहन मैं निवेदन करूंगा थोड़ी देर बाद हम वो प्रश्न शुरू करेंगे। तो उस समय आपको पहला नंबर, सलाम सर, डॉक्टर शालिनी बहन है और उनको हम पहले नंबर पे प्रश्न उनका लेंगे अब की बार, है जरूर ना। तो जरूर थोड़ी देर बाद वेलकम। हम प्रश्न लेंगे। जी। अब हम चर्चा करते हुए, पाठ्यक्रम पे हम चर्चा करते हुए आ रहे हैं। हमने अपठित बोध से चर्चा शुरू की, हमने व्यावहारिक व्याकरण पर चर्चा की। अब हम साहित्य खंड, साहित्य खंड में आप जानते ही हैं पाठ्यक्रम में पठित बोध है, पठित पद्यांश है, पठित गद्यांश है, 2 अंकीय 3 प्रश्न हैं, संचयन में 3 अंकीय 2 प्रश्न हैं। तो ये पाठ्यक्रम आप सब आत्मसात कर चुके हैं। हम चर्चा कर रहे हैं पाठ को कैसे आकार दिया जाए, पाठ को कैसे बच्चों के मन में उतारा जाए। तो सबसे अच्छा है जो हम एक माइंड मैप की तरह बना के अगर हम कार्य कर रहे हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा। और कई जगह हम प्रयोग कर डालें, जैसे बच्चों से कहें बेटा क्या एक बोर्ड में हम कविता को पूरा कर सकते हैं पढ़ाने के बाद। फिर बच्चा खेलने खेलने के मूड में होता है और उससे हम पूछते हुए चल रहे हैं बेटा इसका क्या अर्थ होगा, मूल स्वर क्या है इसका, और आप लिखते चलें। तो एक बोर्ड ही काफी होता है। लेकिन पढ़ाने के बाद, जब हम सारा पढ़ा चुके उसके बाद, अब देखिएगा इससे कुछ बाहर नहीं है। आपने देखा पूजा बहन, शुरू के 3 पढ़ दीजिए आधार बिंदु। जी। जी सर, जी सर। मनुष्यता कविता का मूल स्वर, जीवन में मानवता के महत्व से परिचित करवाना है। दूसरा है हमें मानवता को सर्वोपरि धर्म मानना चाहिए। तीसरा है यह कविता वसुधैव कुटुंबकम व सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जैसी पवित्र भावनाएं मन में रखने का संदेश देती हैं। बिल्कुल। एक ये भगवान बुद्ध वाला और पढ़ते हैं क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है। जी सर, जी सर। केवल स्वहित की भावना मन में रखना पशु प्रवृत्ति है, वहीं परहित की भावना से मंडित होना देव भाव है। हाँ, देवत्व भाव है। और ये हो गया एक, ये आगे की तरफ भगवान बुद्ध। ओके ओके सर। भगवान बुद्ध ने धर्म की कठोर मान्यताओं से अलग एक ऐसा धर्म बनाया था जिसमें दया व करुणा का समावेश था। कविता में इसे ही विरुद्धवाद कहा गया है। कहा गया। तो जी विरुद्धवाद किसे कहा गया ये प्रश्न आ जाता है, तो हमने यहाँ पर दे दिया। तो आपने देखा आधार बिंदु, जिनको हम प्रवाह बिंदु कह रहे हैं, वे बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। हम कोई किसी कविता को पढ़ा रहे हैं, किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं, एकदम स्पष्ट बिंदु होने चाहिए। अगर ये बिंदु स्पष्ट हैं, कठिनाई स्तर जो व्याख्या पंक्तियां हैं वो सामने आ गई हैं, बच्चे से हम संवाद कर रहे हैं पढ़ाने के बाद, बेटा इसका बताएं, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, बताएं बेटा इसका। अब बच्चे बता रहे हैं। 2-4 बच्चों को नहीं आ रहा है, 10 बच्चों को नहीं आ रहा है मान लीजिए, लेकिन सुन रहा है लगातार, लिख देगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहां क्लिक कर सकता है उसको, है ना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, है ना। तो इस प्रकार हम अगर कर रहे हैं तो फिर सहज हो जाएगा। आप देखिएगा अगला बोर्ड देखिएगा, हम रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं इसलिए पूरी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर भी, है ना, बोर्ड का कमाल है। पढ़ाने के बाद बोर्ड का प्रयोग, श्याम पट अधिगम को सहज बनाता है। कई बार ये छप जाता है बच्चे के दिमाग में, मन में छपता है, तो हमें इस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। अब ये देखिए पर्वत प्रदेश में पावस। अब साहित्य खंड का दूसरा रूप देखिएगा, गद्य पाठ देखिएगा कैसे हमने उसको लिया, देखिएगा 5-6 बिंदुओं में ततारा वामेरु कथा पाठ आ गया। जो क्या निषेध परंपरा थी वो काले से हमने दे दी।
तो ये बसेगा दिमाग, बसेगा मन में, है ना, अधिगम सहज बनाएगा। आगे देखिएगा, डायरी का एक पन्ना, कलंक वहां पे दे दिया जो कलंक लगा था कलकत्ता के नाम पर, बाकी सारी चीजें मुख्य बिंदु आ गए, एक माइंड मैप की तरह कार्य कर रहा है ना। तो हमें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के हिसाब से, पाठ्यक्रम के जो बिंदु हैं, जो खंड हैं, साहित्य खंड में क्या अपेक्षित है, व्याकरण खंड में हम हमसे क्या अपेक्षित है, और जो अपठित बोध है उसमें क्या अपेक्षित है, रचनात्मक लेखन खंड में क्या अपेक्षित है, वे सारे बिंदु कहीं ना कहीं हम गहराई से आत्मसात करें, उस पर फिर कार्य करें, तो सहज होगा, बच्चे समझेंगे। अब आप देखिए बोर्ड का प्रयोग, आप मतलब यह पाठ आप भी जानते हैं, आप तो निष्ठावान हैं और मतलब अनुभवी हैं, यह पाठ बहुत कठिन पाठ है, लेकिन बच्चे को जब हमने बोर्ड पर स्पष्ट करके दिखाया ना गिन्नी का सोना, आप देखिए सहज हो गया, है ना। अब प्रैक्टिकल, सामान्य प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट ने सोना सामने लिया और लेयर किसकी चढ़ाई, परत किसकी चढ़ाई, तांबे की, सामने क्या आया, तांबा आ गया, यानी व्यवहार सामने आया। गांधी जी क्या करते थे, तांबा सामने रखा, व्यवहार सामने रखा, लेयर किसकी चढ़ाई, सोने की, आदर्श की, सामने क्या आया, आदर्श। ऐसे लोग, आदर्शवादी लोग स्वहित, स्वहित की भावना से वो नहीं होते हैं, उनके अंदर परहित की भावना कूट कूट कर भरी होती है। आदर्शवादी लोग ये होते हैं और इनके अंदर परहित की भावना होती है। स्वहित की भावना किनके अंदर आई, इनके अंदर, अपना भला चाहते हैं केवल ये, और ये परहित की भावना है, दूसरों का भला चाहते हैं ये, और शाश्वत मूल्य क्या है, ये है। समझ में आ गया, पांच मतलब 5-10 मिनट आपने बोर्ड पर लगाए, उसके बाद पाठ पढ़ाया, सहजता के साथ समझ। तो कहीं प्रयोग धर्मी तो हम हैं सब, पाठ्यक्रम को प्रयोग धर्मिता पर भी तोलें, पाठ्यक्रम को नवाचार पर तोलें, पाठ्यक्रम को हम शोधात्मक अभिरुचि के साथ तोलें, सहज हो जाएगा, अधिगम सहज हो जाएगा, लेकिन उसको तोलना पड़ेगा, उस पर चिंतन करना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए हम तैयार हैं। और आगे आप देखें, संचयन खंड है, हमने बिंदु बना लिए हैं। आज हम संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं कि हम कैसे हम वो रणनीति बनाएं, कैसे पाठ्यक्रम है, कैसे हमें लेना है ना। अब मान लीजिए 9th में है तो गिल्लू है, स्मृति है, आगे पाठ है। ऐसी आप ये 10th में है, हरिहर काका है ना, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला है। इसी प्रकार जो हमारा पाठ्यक्रम अ है, वहां पर विभिन्न पाठ हैं, उनके साथ हम कैसे करें, कैसे बिंदुवार उनको बांट लें। अगर बिंदुवार बढ़ गया है कोई भी पाठ, तो इसमें अब बिंदु को छूटे नहीं है। प्रश्न भी उस प्रकार के आ गए हैं जिस प्रकार प्रश्न हमारा बोर्ड दे रहा है। तो ऐसे प्रश्न हम अगर कर रहे हैं, फिर सपनों के से दिन पाठ आ गया, महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बीच में आ गए, है ना, सब कुछ सहज हो जाएगा। आगे बढ़े, टोपी शुक्ला है, मिलजुल कर रहने से ही सद्भावना भरे वातावरण की स्थापना, सर्वधर्म संभाव की भावना पर जोर, सौहार्द पर जोर, कैसे हम उसको, हमने कहा ना, गीत में कहा गया था कि गढ़ेंगे चरित्र, कक्षा में चरित्र गढ़ना है। तो अगर सहज रूप में हम पाठ्यक्रम पढ़ाते समय जगह चिन्हित कर लेते हैं कि यहां पर चरित्र गढ़ने का कार्य किया जा सकता है, यहां पर इस गुण को मन में उतारा जा सकता है बच्चों के, यहाँ सौहार्द उतारा जा सकता है, यहाँ माता पिता के प्रति एक भक्ति भाव उतारा जा सकता है, यहाँ बड़ों के प्रति आदर भाव उतारा जा सकता है ना, यहाँ वैश्विकता उतारी जा सकती है, तो सहज हो जाएगा। तो ये पाठ बहुत अच्छा पाठ है टोपी शुक्ला, आज जरूरत है ना। तो हम अगर इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे तो एक वातावरण तैयार होगा, है ना, हम उस चरित्र को गढ़ने के लिए। और वास्तव में तभी तो कहा जाता है कि जो अध्यापक है वो राष्ट्र का निर्माता है ना, राष्ट्र निर्माता, युग निर्माता माना जाता है, राष्ट्र निर्माता माना जाता है, ऐसे ही नहीं, है ना। तो हम सब प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्प हैं, हम ऐसा करेंगे, है ना। आगे रचनात्मक लेखन पे थोड़ी सी चर्चा, है ना, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। आगे देखिए, लघु कथा लेखन है, कैसे हमें सिखाना है। एक छोटे छोटे उदाहरण, अच्छी सी कोई जो कहानी है उसको लेके आए, लघु कथा लेके आए, लेकिन ध्यान रखें शब्द सीमा का, जो पाठ्यक्रम में शब्द सीमा लिखी है उसे नहीं लाएंगे, उसके अंदर ही कार्य करें। तो अगर हम शब्द सीमा का भी ध्यान रखते हैं,
और जैसे मैंने टेबल दिखाई थी, समय भी हमने बच्चों को दे दिया, बेटा इतने मिनट में आपको करना है, तो सब कुछ सहज होता चलेगा। आप देखिएगा औपचारिक ईमेल का प्रारूप, ये कई भाई बहनों ने पूछा, तो एक अच्छा प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, है ना, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट मैसेज बॉक्स में पहले दिनांक और समय, वैसे तो वह बाय डिफॉल्ट आएगी, लेकिन हम जिस समय लिख रहे हैं उस समय हम दे सकते हैं यहाँ पर। फिर हम कैसे आरंभ करेंगे, तो सहजता के साथ, है ना। बहन प्रश्न अभी लूंगा, सबके प्रश्न, बस इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उसके बाद प्रश्न, तो प्रश्न आपके लेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप है, देखिएगा आप कैसे, ये प्रारूप पूरा दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बहन, पूजा बहन, अगर इस प्रारूप को हम पहले ही करवा दें बिल्कुल अच्छी तरह से, और क्या करें, जैसे अगर हमने प्रारंभिक औपचारिकताएं, एक दिन हमने प्रारंभिक औपचारिकताएं करवाई, उनसे कहा बेटा सीखें, पहले प्रारंभिक औपचारिकताएं सीखें, फिर हमने दूसरा पहला अनुच्छेद उनको लिखना सिखाया, फिर दूसरा अनुच्छेद जहां विषय वस्तु को विस्तार देता है वहां हमने 2-3 अलग करवा लिए। अभी हम प्रारूप पर, मतलब प्रारूप वाला नहीं करना है उस दिन अभ्यास, उस दिन द्वितीय अनुच्छेद का अभ्यास करना है। द्वितीय अनुच्छेद विषय से जुड़ा हुआ होता है, तो यह प्रयोग भी एक अच्छा प्रयोग माना जाता है। पूजा बहन, जी सर। आपके क्या विचार हैं इस पर? जी, अगर हम अलग अलग अनुच्छेदों में बांट दें, मतलब एक अनुच्छेद का अभ्यास अगर हम, द्वितीय अनुच्छेद का अभ्यास जहां हम विषय को विस्तार दे रहे हैं, उसके 2-3 एक साथ करवा लें, तो क्या बच्चों को कुछ फायदा लगेगा? ठीक है, बच्चों की रचनात्मक क्षमता कहीं बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी बहन। बिल्कुल सही सर। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक पूरा दिया अभ्यास, और उस पर पूरा प्रारूप से ही लिखवाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम 3 विषय दे दें और उनसे कहें बेटा इस समय ना प्रारूप आपको आ चुका है, आप उसको फिट कर देंगे उसमें, लेकिन मुझे केवल दूसरा अनुच्छेद चाहिए आपसे, दूसरा अनुच्छेद बुन के दिखाएं, तो यह प्रयोग भी एक अच्छा प्रयोग होगा। चैट बॉक्स में देखते हैं अपने भाई बहनों का की जी सर। प्रतिक्रिया जान। बिल्कुल आ गया, टुकड़ों में करवाए तो उन्हें कल्पना बहन ने समझ बहुत ही आ सुंदर बात। जाएगी। यस सर। जी जी, देखिए तभी तो आपकी मोहर लगती है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो सब फिर सही हो जाएंगे, है ना। बस अब समापन की ओर हम बढ़ते हैं, फिर आपके प्रश्न, है ना। अब देखिए इसी प्रकार ना आगे भी आप सूचना लेखन का प्रारूप है, आज ही एक बहन का आया था मैसेज, तो यहाँ पर 8 अगर हमारे बिंदु हैं, उन 8 बिंदुओं में सिमट जाएगा ये सूचना लेखन। आप देखिएगा यहाँ पर शुरू में संस्था का नाम और स्थान और वो गोपनीय, आवश्यक सूचना, फिर छोटा सा विषय कोष्ठक में, फिर बाईं ओर दिनांक, फिर हम औपचारिक आरंभ करें और पूरा एक अच्छा सा अच्छी सी सूचना आ जाएगी। तो ऐसे अभ्यास हम एक ना एक, मतलब 2 महीने के अंदर हम एक रचनात्मक लेखन पर भी लेंगे, एक व्याकरण पर लेंगे। अब देखिएगा 10th ये इसी में देखिए आप कैसे विषय वस्तु आकार लेती है, कैसे वो कब कहाँ क्या, इनसे आकार लेती भी चलती है। तो देखिए 7वां पॉइंट विषय वस्तु को कैसे, अगर यहाँ पर आप देखें कैसे खोला गया है, तो ये सब एक अच्छा प्रारूप है। अगर हम पाठ्यक्रम को लेकर और फिर आत्मसात करके, फिर ये थोड़े से नवाचार करके अगर बच्चों तक पहुंचेंगे तो अधिगम बहुत सहज होगा, हमारे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। अब देखिए विज्ञापन है, विज्ञापन में देखिए आनंद आ जाएगा, है ना। और जब एक बार बच्चे को सिखा दें तो बच्चे से मौखिक अभिव्यक्ति भी करवा लें, मतलब इसकी विज्ञापन प्रस्तुति करवा लें। 2-4 बच्चों को कहें ग्रुप बना दें, अब विज्ञापन प्रस्तुति करके दिखाएं, है ना। अब देखिए बच्चों ने सूत्र भी बनाए हुए, BNQOC, यानी बी से बॉक्स, एन से नारा, क्यू से उसकी क्वालिटीज, ओ से ऑर्गेनाइजेशन या ऑफर, और सी से कंपनी। तो ऐसे करके सी फॉर कलर भी, अगर समय है तो कलर कर सकते हैं। तो बच्चों ने अपने सूत्र यहाँ पे बनवा दिए, देखिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए जनहित में जारी विज्ञापन है, रेडियो जॉकी की तरह आप इसको बुलवा सकते हैं कि बेटा रेडियो विज्ञापन आप इसको बनाएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सब ने वास्तव में ध्यान से सुना
आप पूरी निष्ठा से सुनते हैं और मैं गदगद हूँ। मतलब शब्द नहीं है मेरे पास आपके आपके स्नेह के लिए, और जितनी तन्मयता से आप सुनते हैं मैं गदगद हो जाता हूँ। तो आज का सत्र आपकी उपस्थिति ने, आपकी निष्ठा ने, आपकी सक्रिय भागीदारी ने, आप चैट बॉक्स में मुझसे जुड़े रहे, ये चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। और मुझे विश्वास है कि आज जो हमने चर्चा की वह निश्चित रूप से फलदायी सिद्ध होगी, उपयोगी सिद्ध होगी। और हम सब अपनी कक्षाओं में इस प्रकार प्रयोग करेंगे, पाठ्यक्रम को आत्मसात करेंगे, पाठ्यक्रम के साथ हम शोध करेंगे, नवाचार करेंगे, प्रयोगधर्मिता अपनाएंगे, और सहज, सब कुछ सहज हो जाएगा। आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत आभार। और पुस्तक आपकी दिखाई दे रही है, बीच में रेफरेंस बुक के लिए पूछा गया था, तो आपकी पुस्तक आप दिखाई दे रही है, देखिए, है ना? तो आप जरूर देखिएगा इसको। सर जी हाँ, पूजा बहन, प्रश्नोत्तर की तरफ चले सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर शोभा उपाध्याय मैम का थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर जी मेरी अब चिंता का विषय मैं यह। ये पीपीटी हटाना चाह रहा हूँ। जी सर। पीपीटी पीपीटी हटा दूं, उसके बाद फिर प्रश्न लेते हैं। जी सर। जी सर। हटाया हटाया। जी 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 जी, हाँ हाँ सर, ने हटा दूं। जी 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 धन्यवाद सर। हाँ जी जी बहन। शोभा उपाध्याय मैम का प्रश्न है सर। सर जी मेरी जी चिंता का विषय यह है कि एक ओर तो हम हिंदी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर उसे कठिन बना रहे हैं। देखिए, दक्षता आधारित शिक्षा है, बोर्ड प्रयोग कर रहा है, और हम सब ने अपनी बात उन तक पहुंचा दी है। पीछे भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, जब रिजल्ट मतलब जब एग्जाम हुआ था, तो हम सब ने बात पहुंचा दी है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, जो प्रारूप है, उसमें कहीं भी विचार जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए जो कमेटी में वहां पर विद्वान व्यक्ति हैं, है ना, जो बोर्ड में, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं उस पर विचार करेंगे। आप सबके मेल उन तक पहुंचे हैं, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और तब तक हमें, जैसे मैंने शुरू से बताया, हम दो स्तर लेके चलें, दो स्तर से हम उच्च तक आए। हम पहले सामान्य स्तर पर कुछ कार्य करवाएं, उसके बाद हम उच्च, जो बोर्ड के प्रश्न पत्र प्रारूप है, उसमें जो कठिनाई स्तर है उसके अनुकूल तक लेके उसको जाएं। एक ही अपठित बोध को या एक ही व्याकरणिक अभ्यास को हम ऐसा करें, पहले व्याकरण सरल दे दें, उसके बाद जो बोर्ड का स्तर है उस तक लेके आए उनको। तो एक बार अवधारणा समझ में आ जाएगी, तो हमारे बच्चे उच्च कठिनाई स्तर तक भी पहुंच पाएंगे, है ना? बाकी तो विचार उस पर निश्चित रूप से बोर्ड कर रहा हो। जो आप सबकी चिंता है वो मेरी भी चिंता है ना? तो निश्चित रूप से हमारी चिंता से अवगत हो चुका है बोर्ड, और उस पर कार्य कर रहा हो। जी जी सर। सर धन्यवाद, बहुत सारे आए हैं आपके लिए। बोल रहे हैं, प्रतिभागी बोल रहे हैं कि आपका जो सेशन था बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत सारी जानकारी मिली उन्हें, उनके मेरा प्रश्न का सौभाग्य। उत्तर भी मिला इस सेशन में सर। और सुनीता मैम का भी प्रश्न जो है शोभा मैम से मिलता जुलता है, तो मुझे आशा है कि मैम को आप उत्तर उनका मिल गया होगा। यही है सर। आगे बीच में एक डॉक्टर बहन, क्या पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनका उनका बीच में प्रश्न आया था। मैंने कहा था कि हम पहले नंबर पे उनको ले लेंगे, तो क्या उनका भी हाथ उठा हुआ है? सर अभी तो नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अभी अपना प्रश्न जी प्रस्तुत जी करें। जी जी। तब जी तक हम इनके कोमल मैम सभी प्लीज। के प्रश्न। कोमल मैम प्लीज। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी विनोद जी सर, जी सलाम बिल्कुल। सर, सभी को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। शुभ अ, संध्या।
सर मेरे 2-3 प्रश्न हैं, क्योंकि मुझे पता है जी कि उसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता नहीं है, नहीं क्योंकि हमारे प्रश्न सर बोर्ड तक पहुंचते नहीं है। मैं आपको जी सही बता रही हूँ। मैं जी पिछले 5 साल से बोर्ड के पेपर करेक्शन के लिए जा रही हूँ, और वहाँ पे मैं एएचई कोऑर्डिनेटर हूँ। वहाँ इतनी समस्याएं आती है ना सर कि मतलब किससे पूछे समझ में नहीं आता है ऐसा, नहीं, आप क्योंकि मेल वो लिखिए। मेल आपको सर उपलब्ध बहुत बार मेल किया, हमारी जो एचई है उन्होंने भी बहुत बार मेल किया, पर हमें कोई जवाब नहीं मिलता है। और जी जी समस्या ऐसी है ना सर कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, एक एक नंबर, आधे जी आधे नंबर के लिए सर आपको पता ही है बच्चे क्या क्या कर लेते हैं, इसलिए। जी तो सर पहला एक जो हमारी समस्या ये है कि हम जब पेपर चेक कर रहे थे तो हमने ये देखा कि एक एक नंबर के लिए सर व्याकरण में इतना सारा पूछा हुआ था कि बच्चों के बहुत नंबर कट रहे थे। मतलब उसका उदाहरण भी देना है, फिर उसका भेद भी बताना है, उसको बदल के भी वापस लिखना है। तो एक नंबर के लिए सर इतना सारा लिखना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो देखिए जाता है। बहन, उसमें ना हमें हम सबको मिलके क्या करना चाहिए, बहुत छोटा उत्तर लिखना सिखाना चाहिए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ उदाहरण, मान लीजिए मैंने प्रश्न दिया, मैंने प्रश्न पत्र बनाया और मान लीजिए मैंने प्रश्न दे दिया कि सरल वाक्य का उदाहरण देते हुए कारण भी बताइए, ऐसा प्रश्न दे दिया मैंने। बिल्कुल। बच्चे को मैं हमने सिखाया हुआ है कि बेटा भी याद रखना है, उसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है बेटा, बस। अब बच्चे ने लिखा सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, उसने हेडिंग डाला कारण, उसमें लिखा इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है, कितने शब्द आए। अब नहीं इसी सर बात को सब। अगर मैं हाँ। विस्तार देके अगर मैं कहूँ ना, तो जी सर। विस्तार देके तो बहुत बड़ा हो जाएगा बहन, जी है ना। जी। तो जितना भी छोटा उत्तर हम करवा सकें व्याकरण में, उतना सर हम मेरे लिखना सीख। पास वो आंसर की भी है, क्योंकि हमको मिलती है वहां पे सर देखिए सच में बता। सर समस्या ये आंसर की नहीं है कि केवल एक बच्चे आधार लिखते होता है, हैं। एक आधार होता है कि हम उस पर जी जी। चलें, लेकिन हमें बच्चे के की अवधारणा को ध्यान में रख के हम बिल्कुल मूल्यांकन करते हैं, और उसमें लिखा बिल्कुल। हुआ भी होता है कि हम अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। नहीं वो बोर्ड है लिखता सर, समस्या है वो ना। नहीं तो है हम जी बिल्कुल, जी। हम अब जब हम अपने बच्चों को सिखाएं ना, तो उसमें बच्चों को यही सिखाएं कि एक अंकीय प्रश्न है बेटा, एक अंकीय उत्तर, आपने उसका उदाहरण लिख दिया, आपको कारण बहुत छोटा लिखना है। तो अगर हम ऐसे तैयार करेंगे ना, तो बहन हमारे बच्चे सीखेंगे और छोटा करके लिख के आएंगे, और उसमें हम मूल्यांकन करेंगे तो अच्छा भी रहेगा और उनका समय भी बच रहा है ना। तो सर थोड़ा सा समझ। हम भी सिखाएं, जी जी। और बोर्ड से आप सबने आग्रह कर ही लिया है ना, तो वो मार्किंग स्कीम जब बनाएगा तो उसके छोटे उत्तर भी अ, मतलब सर देगा, मुख्य है ना। समस्या ये है कि सर बाकी जो अगर हम प्रश्न पत्र देखें तो ऐसा है कि सर हिंदी ही सबसे कठिन होता है। आज तक का सर रिकॉर्ड है, सबसे कठिन अगर हाँ, बच्चों को प्रश्न जी पत्र लगता है बहन, हिंदी अभी लगता है, प्रश्न वही क्योंकि आया सर था आखिर कि तक कैसे। बच्चे लिखते रहते हैं सर, आखिर तक हाँ, लिखते रहते हैं। और तो आप इस यही पर अगर हमने मराठी और संस्कृत देखें सर, 1-1.5 घंटे में उनका पेपर हो जाता है। वहां एक जी नंबर के लिए एक शब्द, दो शब्द, ज्यादा से ज्यादा 3-4 शब्द, और हमारे जी बच्चे लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। जी ठीक है। बहन, और इस पर कठिनाई हमने सर तो सर सब यही मानते हैं सर, हमारा जो भविष्य है ना, मैं आपको सच बताऊं, हमारा भविष्य खतरे में है, हिंदी शिक्षिकाओं का नहीं नहीं भविष्य। बहन, ऐसी ऐसी बात नहीं सोचनी सर चाहिए हम देख रहे हमें हैं, निराशावादी नहीं आप होना अभी आप चाहिए। पूछ लीजिए, कितनी सारी शिक्षिकाओं से पूछ लीजिए सर, हिंदी के बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, दिनों दिन जी कम जी होती जा रही है, क्योंकि बच्चे ये देखिए, देख आप ही मैं रहे हैं कि बताऊं, कठिनाई स्तर आप बहुत ज्यादा सबने है। ना, आप सबने बोर्ड को पत्र लिख दिया है इस संदर्भ में। जब हम बिल्कुल हिंदी का सर पेपर लिखा हुआ, है। मैंने पहली बार भी वही बात कही, बिल्कुल लिखा और है। उस पर बोर्ड विचार कर रहा है। तो हम वास्तव में विचार करेंगे इस पर, किसी उस पर अन्य प्लेटफॉर्म पर हम विचार करें, बिल्कुल। और क्योंकि समस्या ये नहीं निश्चित है रूप कि से ना हम उस पर पढ़ाते विचार नहीं हैं विचार तो या बोर्ड कर फिर। रहा होगा। बिल्कुल। अगर, समस्या है ना, ये नहीं है बोर्ड कि अगर विचार करेगा हाँ तो हम इसका पढ़ हल निकल के आएगा। बिल्कुल हम पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर हम गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, समस्या वो है ही नहीं। समस्या ये है हम्म, सर कि हिंदी के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम एक तरीके से चाहते हैं कि हिंदी आगे बढ़े, हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और फिर यहाँ हम खुद भारत में रह के सर हिंदी को इतना कठिन बना रहे हैं कि बच्चे डर रहे हैं उससे, क्योंकि पहले की आप हिंदी में और अब की हिंदी में जी सर बहुत अंतर है, बच्चे वैसे है ही नहीं। उनको जी जी शुद्ध जी हिंदी सिर्फ हम पढ़ा रहे हैं ना, जो 30-40 में उतनी ही मिल रही है, बाकी उनको अच्छी जी हिंदी मिल ही नहीं रही है। एक जो बिल्कुल साधन होता है, हम कितना कुछ पढ़ते थे, हमारी हिंदी इतनी अच्छी है, वो अब के बच्चों को नहीं मिल रहा है सर। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं ना, हिंदी बच्चों की बहुत खराब होती जा रही है, और वैसे वैसे सर प्रश्न पत्र बहुत कठिन होता जा रहा है। मैंने समस्या इस पर ये है। देखिए विचार, अब वही विचाराधीन है, मतलब बोर्ड विचार कर रहा है इस पर। तो हमें सकारात्मक रहना चाहिए।
और वो तो बोर्ड पे हमें भरोसा है, बोर्ड हमारी बात सुनेगा, आपकी बात, है ना। बिल्कुल सर। और एक थोड़ी सी एक तरीके से रिक्वेस्ट थी, एक तरीके से जितने भी हम्म। रचनात्मक लेखन के प्रारूप हैं, अगर वो सीबीएसई अपनी साइट पे जैसा उनको चाहिए बिल्कुल वैसा, क्योंकि अभी हम पेपर चेक करते हैं हमको पता चलता है कि जैसे एक मान लो एक लॉट आया पूरा 100 का 50 का जितना भी, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने एक जैसा फॉर्मेट काम में लिया होता है, फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अलग फॉर्मेट काम में लिया होता है। वो अपने आप से तो करेंगे नहीं, उनको किसी ने बताया होगा, उनके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं शिक्षिकाएं हैं। तो सर ये विविधता देखी जा रही है। तो एक बोर्ड इस पर अगर इस पर एक बार विचार करेंगे, इस पर एक मेल लिखा बिल्कुल, जा सकता है, तो है क्योंकि ना, एक निवेदन किया एक जा ही सकता है बोर्ड फॉर्मेट से। अगर बोर्ड अपनी साइट पर डाल दे कि यही काम में लेना है तो बहुत अच्छा होगा हम्म। सर। नहीं, ये सुझाव आपका अच्छा है। जी और बोर्ड से निवेदन एक बार करके देखा जा सकता है इसका। जी, बिल्कुल, क्योंकि आप भी सर एक बार बाकी मेल सबका कीजिए। क्या होता है, मराठी में संस्कृत में उनकी जो किताब है उसी में से आते हैं प्रश्न, उसके बाहर जी से जी बिल्कुल नहीं आते। और हिंदी में ऐसा है कि कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। जी और जी। फॉर्मेट कैसे है ना सर, जो प्रारूप है वो एक ही होने जी, चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि हम इतने सालों बिल्कुल, से नहीं, ये पेपर चेक सुझाव करते आपका जा अच्छा रहे हैं। है जी ना, जी, तो कि आप एक भी मेल फॉर्मेट लिखिए। बोर्ड का जी, होना चाहिए। बिल्कुल, ये सब बात अपने अपने वहां हिसाब तक से पहुंचनी पढ़ाते हैं चाहिए। सर। अभी हमने अनुच्छेद जी देखे कैसे वाले, अनुच्छेद में बच्चे कैसे करें। कुछ एक लॉट आया था ऐसा, क्योंकि हमारे पास 2000 से ज्यादा पेपर्स आते हैं। एक लॉट ऐसा आया था जिन्होंने, जैसे मराठी में शायद ऐसा होता है कि जो संकेत बिंदु होते हैं, संकेत बिंदु लिखा, उसी को आगे बढ़ा दिया, तो वो एक वो जी पैराग्राफ को सिर्फ 4-5 टुकड़ों में कर देते हैं। जबकि हम अनुच्छेद में ऐसा कहते हैं कि शुरू से अंत तक एक जैसा होना चाहिए, आप बीच में उसको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। अब उसमें कैसा है जी। सर, टीचर्स ने वैसा बताया तो बच्चों की भी गलती नहीं है, तो इस तरीके से फिर उनके नंबर कट जाते हैं। ऐसा जी है। जी। तो अभी ये रिजल्ट ये आया है इसमें सर कल, तो जी मेरे सिर्फ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो 99 पे पहुंचे, जबकि इतने सारे बच्चे थे जो बहुत अच्छा कर सकते थे। वो ठीक है, क्योंकि प्रश्न पत्र का स्तर ही जी। ऐसा था, हमने तो बहुत मेहनत करवाई है, बच्चे भी बहुत इन मेहनत सब करते चीजों पे भी हम पढ़ते विचार रहते हैं। करेंगे, है ना, फिर एक जी सर। जो उसमें विचार करेंगे, ग्रुप पर भी जी विचार जी कर लेंगे इस पर, बिल्कुल, है और मैं ना। आपसे और इसीलिए बाकी बातचीत करती बोर्ड इस रहती पर हूँ कार्य कर हमेशा। रहा होगा, ऐसा हमें विश्वास है जी ना। जी जी सर, धन्यवाद सर, मुझे अच्छे तरीके से सुनने के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत नहीं नहीं, समस्या है मैंने हमारी भी। बहुत सुनना ही है मैंने, जी 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 सर, जी। धन्यवाद सर। नेक्स्ट Yes, मनीषा मैम। Komal Sharma ji, all we can understand your concern, and we very well, listen to the groups. So many concern we can see, but it is not in our hands, right? जी So everybody can write to CBSE, so they will listen to you definitely. So let's not discuss this thing, paper and evaluation and all. Let's discuss and get clarity on the syllabus. Otherwise, the session cannot, end up within time. We have just 10 minutes to go. So, Pooja ma'am, you can take up a few questions. जी, Manish, what is Manisha madam? Yeah. मनीषा मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। शुभ संध्या सभी को। सर विनोद सर, मैं जानना चाहती थी कि जैसे अभी 7th का, लास्ट ईयर 6th की बुक चेंज हुई है, मल्हार लगी है, इस बार 7th की है, और 8th का भी हम सुन रहे हैं कि चेंज हो रही है, आ तो क्या जाएगी, आ 9th और जाएगी। 10th का भी एट ऐसे कुछ है आगे? नाइन्थ की, 9 10th का इस बार नहीं आएगी, इस बार नहीं आ है रहा ना। है जी जी हाँ, जी। क्योंकि तो उन्होंने अपनी शायद साइट पे भी लिखा है, तो 8 तक का ही जी लिखा है ना। 8 तक का, तो 26 जी, 27 आई थिंक 9th का चेंज हो सकता उसमें है आ ऐसे। जानी चाहिए, आ जानी जी चाहिए। जी जी, धन्यवाद। अनुराधा मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम। अनुराधा मैम। अनुराधा Miss, मैम। Miss Athar, you can unmute. We cannot hear हेलो। you. We cannot hear you. सर क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? Yes, जी yes. जी मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुभ शुभ संध्या सभी को। शुभ शुभ। सर मैं गुरुग्राम के एक प्रतिष्ठित संस्थान जी संसिटी बहन। विद्यालय से हूँ। और अभी आज जब कल जब बोर्ड के परिणाम हम तक पहुंचे तो बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और मुझे लगा बहन 98, आपके बच्चों ने अच्छा ही किया होगा। जी 98 अंक हमारे विद्यालय में हाईएस्ट बच्चों के आए हैं। और 98, तो बधाई हो जी, आपको, बहुत बहुत और बधाई। उससे भी प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारे 114 बच्चों में से 60 से ऊपर विद्यार्थी हैं जिन्होंने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, वो बधाई आपको जी। जी, लेकिन हमारे सामने एक प्रश्न हर साल ये आकर खड़ा हो जाता है कि हमारे जी, विद्यार्थी 100 अंक प्राप्त करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं। देखिए 100 के क्या लिए ना, सर, देखिए मेरा जो एक प्रश्न है। 98,
कि क्या जी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हमारे विद्यार्थियों को 100 अंक लेने की अनुमति देता है? बिल्कुल आ रहे हैं। मैं अभी मेरे भी विद्यालय में आए हैं, तो इस बार भी आए हैं। तो बोर्ड तो 0 से 100 का पैमाना स्वीकार्य है, तो वहां सर 100 हमें आते हैं। हमें आप एक ऐसी तो एक लेकिन ऐसा 100 के लिए ना बहन, आज जो जी जिस बच्चे के 98 आ रहे हैं, जी 98 आ गए, 99 आ गए, वो जी लगभग 100 ही हैं। हमें मतलब ये अब वो 100 दिखाई नहीं दे रहा उनकी मार्कशीट में, लेकिन उनके 100 है। उन्होंने प्रयास 100 के लिए किया। अब जी 100 के बिल्कुल। साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। जी 100 के साथ में देखिए कई बार ये भी होता है, जो इवेल्युएटर उसको मिला, जी कई बार ऐसा भी होता है कि उसने बहुविकल्पी प्रश्न गलत कर दी। जी बहुविकल्पी प्रश्न में वो तो बहुत सारा लग भी चलता है, जी 100 आ बिल्कुल। जाते हैं। अच्छा तो सर जिसकी कॉपी बिल्कुल ही ऐसी खरी उतरती है, जो उसने बहुविकल्पी प्रश्न भी सब सही किए हैं, जी वह वर्णनात्मक प्रश्न भी सब सही किए हैं, उसके 100 आते हैं। और जी आप प्रयासरत हैं बैल, अगर आपके 60 बच्चे 90% से ऊपर अंक ले सकते हैं, तो जी आप यकीन मानिए आने वाले समय में आपके बच्चे 100 भी लाएंगे, है ना। सर मेरा एक सवाल और है कि जो जी अर्थग्रहण संबंधी क्षेत्र होता है हमारा, यानी कि अपठित बोध, उसमें हम्म, कई बार जो पेपर सेटर होता है उसके हिसाब से किसी प्रश्न का उत्तर वो अर्थग्रहण संबंधी है, उसका उत्तर अर्थ के आधार पर कोई भी सही माना जा सकता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का अभ्यास करवाते हैं तो बच्चे इस असमंजस की स्थिति में आते हैं परीक्षाओं के दौरान कि जो प्रश्न का उत्तर उन्हें ठीक लगता था, एग्जामिनर के हिसाब से वो उत्तर सही नहीं है। जी। तो इस इसके लिए स्थिति ना, में इसके लिए हाँ देखिए, इसके लिए अभ्यास करवाया जाएगा, जो मैंने आरंभ में बताया ना। हाँ वो मैंने हम देखा सर, बिल्कुल। एक ही गद्यांश को, अपठित जी गद्यांश को अलग अलग स्तर से। वो 3 भागों में बांट दें। जी हम बिल्कुल। सरल से शुरू करके, आज तो मैंने 2 दिखाए क्योंकि समय का अभाव था, जी सामान्य और उच्च कठिनाई स्तर दिखाया, लेकिन हम जी सरल से भी शुरू कर सकते हैं। हमने जी एक ही गद्यांश को सरल से शुरू किया, फिर हम सामान्य पर लाए, फिर हम उच्च जी पर लाए। तो जी जब वो तीनों में अंतर समझेगा ना बच्चा, तो वो जी अवधारणा बोध कहीं करेगा, जी है ना। जी तो वो कहीं ना कहीं फिर उसके निकट पहुंचेगा, उसके उत्तर सही आएंगे, ऐसा विश्वास है ना? थोड़ा जी सा अभ्यास हम सब करवाएं इससे। जी मेरा एक जी आखिरी प्रश्न और है सर। सर हम जी बच्चों को जब पदबंध करवाते हैं तो क्या हमें जी। अव्यय पदबंध और समुच्चय बोधक पदबंध, क्या यहाँ तक बच्चों को ले जाने की आवश्यकता पड़ती है? देखिए कि जो क्रिया विशेषण पदबंध कहा गया, जी वह वह अव्ययी पदबंध है। बिल्कुल सर बिल्कुल। हमें अलग से समुच्चय बोधक पदबंध या ऐसे नहीं कहना है। जी अगर हम क्रिया विशेषण पदबंध को भी अव्यय पदबंध कह दें तो वो अव्यय ही है, जी लेकिन उसका प्रचलित इस समय नाम क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। जी तो अगर क्रिया विशेषण पदबंध को भी अव्यय लिख दिया जाए, जी तो व्याकरणिक दृष्टि से तो वो सही है बिल्कुल। दोनों ही पिछले समानार्थी का कार्य करते हैं। जी देखिए क्रिया विशेषण भी है तो अव्यय, जी बिल्कुल तो अव्यय पदबंध तो सही है। बिल्कुल। अगर कहीं हम संबंध बोधक से जोड़ते हुए देख रहे हैं, या जी निपात से जुड़ा हुआ कहीं देख रहे हैं, तो उसमें जी हम अगर अव्यय पदबंध लिख देते हैं तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो क्या लेकिन अगर बच्चा अव्यय वाले को क्रिया विशेषण लिख आता है, तो ये जी इसको स्वीकार किया गया है। बोर्ड इसको स्वीकार करता है, 5वें भेद के रूप में स्वीकार कर लेता है। पिछले वर्ष 2024 के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा गया था सर कि अव्यय पदबंध का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाना चाहिए। जी पदबंध के 5 विकल्पों हाँ में से एक प्रश्न ये भी था। लेकिन जब हमने इस हाँ प्रश्न पत्र को बच्चों के साथ कक्षाओं में साझा किया तो बच्चे इस प्रश्न को नहीं समझ पाए। तो हाँ, मेरा क्योंकि हमने उस समय तक बताया ही नहीं था, हमने क्रिया विशेषण तक बताया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण। जी बाद में जब ये ऐसे प्रश्न आने लगे तो हम अव्यय पदबंध के रूप में भी उनको समझाने लगे। आज हमारे बच्चे समझ रहे हैं, है ना। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि हमें बच्चों को जो क्रिया बताना विशेषण के जितने बताना भी चाहिए। देखिए बोर्ड ये अगर बताना पेपर चाहिए। सेटर कोई अव्यय पदबंध लिख दे, अव्यय जी पदबंध का उदाहरण देकर कारण जी भी बताइए, तो जी फिर हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, बताओ है जी। ना? ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस सत्र में धन्यवाद शामिल मैम। करने के लिए आप सभी का बात बहुत। करके अच्छा लगा। जी 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 धन्यवाद। कामिनी मैम, प्लीज अनम्यूट मैम। मिस कामिनी मैम। नमस्कार सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। ओके। सबसे नमस्ते पहले मैम। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी धन्यवाद। परीक्षा से पहले सर जो आपने एक प्रश्न गतिविधि का आरंभ किया था, वो जी लक्ष्य जी को जी। प्राप्त करने में बहुत बहुत उसने सहायता की। और मैं मेरा मुझसे सौभाग्य, सभी मेरा शिक्षकगण सौभाग्य। मेरे इस विचार से जरूर समर्थन देंगे इस चीज का। बच्चों ने इसका बहुत फायदा उठाया। दूसरा सर, धन्यवाद। जो मेरे प्रश्न थे वो कोमल मैम उसको पहले ही साझा कर चुके हैं। उन्होंने सभी जी शिक्षकों के मन की बात पढ़ ली।
सर जी मैं पिछले 3 साल से सीबीएसई में एज एन एचई अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हूँ, और वही समस्या सर जय मैम। हमेशा आती रही है। मेरा भी इस बार जो रिजल्ट है 99 पर आके रुका है। हमें जी समझ जी नहीं आ रहा कि ये किस तरह से, वही जैसे एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, विद्यार्थी उसका सटीक उत्तर नहीं दे पाए। और मुझे ये मालूम है कि मैंने आपको बहुत सालों से सुन रही हूँ, आपके साथ मैं चैट भी करती हूँ। मैंने पूरा प्रयास किया, जिस तरह से आपकी शिक्षण विधियां हैं, नवाचार विधि जी लेकर जी आते हैं, इन शॉर्टकट भी, जब एट द एंड ऑफ द सेशन जो आपकी लास्ट, जिस दिन पेपर से एक दिन पहले आपका जो हमारी कार्यशाला थी वो भी मैंने अटेंड की, उसी तरह से बच्चों जी को बताया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है, 99 98 जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं उसमें बहुत जी। सहायता की। लेकिन एक रह जाता है ना सर, वही मलाल 100 हाँ, नहीं वो है 100 आ जाए तो सर। बिल्कुल। देखिए, मतलब कठिनाई स्तर बोर्ड बढ़ाए, लेकिन जी, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिस पर थोड़ा सा चिंतन उन्होंने भी किया होगा। मतलब वहां ऐसा नहीं है कि वो चिंतन नहीं करते, वो चिंतन निसंदेह करते सर, जैसे होंगे सभी ने निश्चित बोर्ड रूप को भी से। लिखा है। और जो मान लीजिए मानवीय भूल कोई हो गई ऐसा, जी तो उस पर वो निश्चित रूप से अगले वर्ष सुधार करेंगे ही, है ना। बिल्कुल सर, हम भी तो यही दो आशा कर तीन रहे प्रश्न हैं। ऐसे थे जहां पर उत्तरों में थोड़ा सा लग जी, रहा था, तो उस पर वो विचार निश्चित रूप से करेंगे। वहां बहुत जो बहुत अधिकारी धन्यवाद। बैठे हैं वो सब मतलब इस बात को सुनेंगे, क्योंकि हम सबकी तरफ से ये गया है, मेल है ना। बिल्कुल तो सर, आपने भी भेजा ही होगा, आपने एचई हाँ की जी, भूमिका निभा रही हैं तो जी आपने भेजा होगा जरूर, जी है ना। सर, हम आशा यही कर रहे हैं सर। जैसे मैं पंजाब से हूँ, होता क्या है सर, जी कंपैरिजन होता है सर, कुछ भी हो प्राइवेट स्कूल्स में, मिड ऑफ द जी सेशन बच्चे हिंदी टू पंजाबी स्विच ऑन करके गए हैं कि मैम जी आप जी तो इतने नंबर हमारे कट जाते हैं स्पेलिंग्स के, पंजाबी में तो नंबर बहुत आते हैं। ये मेरे जी साथ जी। इस साल बहुत हुआ सर, अंदर से दिल भी दुखता है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं हिंदी भाषा को आगे लेकिन ले आपके जाने के लिए। प्रयास प्रशंसनीय प्रयास हैं बहन। 99 आपका हाईएस्ट गया है, वो 99 100 ही जी जी सर जी। है ना। तो वो 99 100 माने आप, आपके सर प्रयासों के लिए तालियां। धन्यवाद सर, लेकिन ये सभी मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे, हमारी आवाज आगे जाएगी। जैसे ठीक। सलाम सर ने भी कहा कि ये बोर्ड का निर्णय होगा, लेकिन बिल्कुल आप हाँ, इतने प्रतिष्ठित पद पर हैं, हमारी आवाज आप वहां तक पहुंचाइए। हमने तो अपनी तरफ से नहीं, प्रयास आप किया है आप सर। ईमेल लिखते हैं ना, तो वो ईमेल जी, पहुंचता है, वो देखते हैं वैसे, है ना। चलिए सर, इसी हम आशा के सबके साथ ईमेल बहुत देखते बहुत हैं। धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद। जी सर। Okay, Pooja ma'am, let's wind up. I think all of the teachers are एक having डॉक्टर शालिनी concern. भार्गव सर डॉक्टर सर। शालिनी, हाँ यस सर, काफी टाइम Shalini, okay, we can take Dr. Shalini's question and we can wind up. यस सर, श्योर सर। डॉक्टर शालिनी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। साईं राम। आप सभी को सादर साईं राम। शायद। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी। माननीय सर, सबसे पहले तो आपका बहुत 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 आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। आभार सर। हिंदी जो एक बहुत ही सरस विषय है, जिसे बच्चे बड़ा बोझिल समझते हैं, दुरूह समझते हैं, क्लिष्ट समझते हैं, उसको आपने हमारे सभी सभी शिक्षक साथियों के अंतरतम हृदय तक पहुंचाया है सर। उसके लिए आपका धन्यवाद। यस सर। तो मेरा सबसे मेरा समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बस मुझे आपसे एक निवेदन करना है और एक प्रश्न करना है। सही है तो बहन जी। सर, निवेदन ये है कि क्या आपसे जुड़े रहने के लिए ऐसा कौन सा जी सहज माध्यम है कि हम आपसे जुड़े रहें? आप अपना या तो व्हाट्सएप बहन, आप नंबर, हमारे ये बीटेक ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? नहीं शायद, नहीं। क्योंकि सर नहीं आज तो ना मैंने देर से ज्वाइन कर पाया, नहीं, नेटवर्क हमारा इशू था। एक ग्रुप है, बीटेक ग्रुप, और जी 3 ग्रुप है वो। उसमें आप किसी जी, भी ग्रुप में नहीं है अभी। मैं नहीं हूँ तो तो। सलाम सर आपको गाइड कर देंगे। मैंने सलाम जी सर, मैंने नंबर सलाम सर। पोस्ट किया, मैंने नंबर पोस्ट किया, यू कैन जी, कांटेक्ट मी। आपका नंबर एक बार हमें आप चैट प्रेषित कर बॉक्स में है, दीजिए। चैट बॉक्स में है, अभी अभी चैट पोस्ट किया। बॉक्स में है? चैट बॉक्स। अभी एक बार और दे दीजिए तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ, अभी है पोस्ट ना? किया आप, अभी पोस्ट किया। अच्छा, जस्ट आप। ए वन सेकेंड, एक बार और प्लीज, दो मैं बार किया, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। यस, दो बार आई हैव टेकन। किया। धन्यवाद सर। अब सर ओके। दूसरी बात ये है जी कि जी आजकल की ये जो टेक्नोलॉजी, हालांकि मेरे बहुत शिक्षक साथियों ने पूछ लिया, लेकिन एक बार मैं और जी आपके मधुर और सरस और प्रभावी वाणी में सुनना चाहूंगी कि आजकल जी। जो एब्यूजिंग लैंग्वेज बच्चे बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, वास्तव में है ना? चिंता का है चिंता ना का सर, विषय। चिंता का विषय है। और उसके चलते उनकी जो लेखन की जो तरीका है ना सर, वो भी प्रभावित हो रहा है। उनको अच्छे शब्द जैसे उनके मन से पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो जो जी जी
एक तो ये कि उसको वो कैसे ओवरकम करे, भले आप मुझे बाद में बता दीजिएगा जब अपन ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और दूसरा जी ये जी सर कि ना, जो अपठित गद्यांश या काव्यांश आता है ना, स्पेशली काव्यांश, वो जी, इतना बोर्ड इतना सेम है। कठिन आता है, इतना कठिन आता है कि कई बार शिक्षक साथी भी उसमें आपस में बहस करने लगते हैं। जी जी जी, तो बहन मैं इसके ये लिए चाहती उपाय हूँ कि यही है। 10वीं क्लास के लेवल के लिए, 10वीं क्लास के जी बच्चे की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए वो थोड़ा सा उसका ये निवेदन पहुंचाइएगा कि बच्चे के मन के मुताबिक गद्यांश और बहन, काव्यांश आए। आप एक मेल ना, आप एक मेल लिख दीजिए, है ना। जी आपके मेल सुने जा, मतलब मैंने कहा ना, पढ़े जाते हैं, उन पर विचार होता है। मतलब जी ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्था, इतनी बड़ी संस्था, मेल पर जी विचार ना करे। तो एक जी मेल जी इस संदर्भ में लिख दीजिए, है ना। सर, मैंने अपने विद्यालय की ओर से भी जब एग्जाम हुआ था तो लिखा था मैंने। मैं जी सत्य साई विद्या विहार गेल विजयपुर से बात कर रही हूँ, गुना से। जी और जैसा जी मेरे जी, शिक्षक साथियों ने कहा, करीबन 80% बच्चों के 90 अब मार्क्स आए हैं। बहुत और 80 99, बच्चों के तो बहुत ही 99 मेरे बढ़िया कम से कम अंक है। 4-5 बच्चों के नंबर आए हैं। बहुत ही लेकिन वही सुंदर। बात है कि दुखती रग वही है कि 100 नहीं आ पाए हैं। बहन, वो 99 100 ही है। सर वो लेकिन 99 का अर्थ ही बच्चों के 100 है। माता पिता जो बच्चा बच्चों के 99 के लिए प्रयास कर रहा है और अर्जित कर रहा है उसको, उसने बच्चों के 100 माता अर्जित कर पिता ली है हमसे इसमें। भी पूछते हैं कि मैडम वो 1 नंबर कहाँ गया है। जी 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 जी, तो सर आपका बहुत बहुत आभार। आप जी, धन्यवाद। Yes, Pooja ma'am, we can wait. जी सर, जी सर। No time. हम कार्यशाला के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं। विनोद सर, आज के इस विषय पर हमें रूबरू कराने हेतु आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे अनुभवी बुद्धिजीवी का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपका आशीर्वाद हम पर सदैव यूं ही बना रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद बहन। सलाम सर। शिक्षक समूह के साथ हमेशा मजबूती से खड़े होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बीजू पिल्लई सर ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कार्यक्रम से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता और धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की और इसे सफल बनाया। सत्र के दौरान आप सभी की अपेक्षित सक्रिय भागीदारी प्रशंसनीय रही। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक भरने हेतु अनुरोध करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी सलाह और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन चर्चा व चुनौतियों के समाधान हेतु सलाम सर और विनोद सर के मार्गदर्शन में हम शीघ्र इस मंच पर पुनः एकत्रित हों। इस आशा के साथ मैं माननीय सलाम सर से सत्र के समापन की इजाजत चाहूंगी और कुछ खूबसूरत पंक्तियों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जी सर। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म बहुत नहीं ही सुंदर बहन, उतने बहुत ही सहने सुंदर। की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। झुक झुक कर बहुत ही सीधा सुंदर। खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर सुंदर, और संचालन भी सुंदर, और बाद में काव्य पाठ भी सुंदर। बहुत बहुत बधाई बहन, बहुत बहुत Yes, बधाई। yes, yes. जोर से तालियां, और सभी जोर से भाई तालियां. बहनों को उन्हें मेरा नमस्कार। So बहुत thank you बहुत so much. धन्यवाद सर। शुभ रात्रि, गुड नाइट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहे सर। Yes.
So thank you Over so to much, Salam, sir. Vinod sir, once again. I can understand that all the Hindi teachers are very enthusiastic. Given a chance, they perform very well. Ms. is very enthusiastic. She was singing that poem very nicely. So, and also the moderation was very good. So keep it up. It doesn't look that Pooja madam is doing for the first time. So thank you so much, and we always, invite talents like Pooja ma'am to come forward and join us. This platform is yours, Extra Mile is yours, and we are working for each and every educator to benefit for the students, and especially we are very much thankful to Dr. Vinod Prasoon, whose guidance is very much, valuable. Every time, we are very keen to listen to him. We get a lot of things as usual. Today also, he has cleared a lot of things. And at the same time, we are sorry that we couldn't take many questions. And at the same time, we can understand your concern. You can continue your questions in the BTAC group. So we'll be able to answer and we'll be able to take it up. Also, you can write to the concerned authority so that they will also listen to such concerns. So thank you so much for joining. All we'll wait for another session by Vinod sir. It will be about grammar, I think. So yeah, grammar, right? All right, sir. Thank you so much. Thank you, Pooja ma'am. Thank you, everybody. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. Yeah, swasti धन्यवाद rahe. Thank you. धन्यवाद पूजा बहन. Thank you. Good धन्यवाद night. सर, विनोद Good सर, night. बहुत बहुत धन्यवाद.